I'm a diploma student and just working with a startup and engaging with papers. क्या हुआ? परीक्षा का बहुत दफा चार से मेरा नाम डेविड सिद्धार्थ और मैं मेरा खुद का एक अभी डिप्लोमा डेवलप कर रहा हूँ तो जिसमें इंडस्ट्रियल बोला था कुछ ट्रेड हो सके. Hello friends, I am Nilesh Shruti. Actually, I am into export of aluminum products. I have accompanied my friend Milind. We keep on sharing some information regarding how we can attract customers and online marketing through online marketing. And so I have accompanied him. Hello, I am Mehta Akshay and I am studying diploma in engineering last year. Myself Sunny Kabra. I am a student of electronics engineering from Surat and I am college? Bhagwan Mahavir. Okay. And I am the founder of Space Technology and Aeronautical Rocketry Club, that is non-profitable organization, and more than 300 students are engaged with me. And I am a space researcher in the private space agency, that is Space Development Nexus, and I am here for getting ideas this summer. So where did you get to know about Surat startups? From Okay, yeah, please. Myself Paul Thakkar. I am a final student and owing a preschool named as a Pixie and That's it. Okay. So first of all, thanks for bringing him here. So we want to know more about what space and everything is. Sure. Okay. Basically, I went to Bulgaria for a training, and when I saw there were many students, they were So having. the first question is, how did you get the platform? भगवान महावीर से हो और ऊपर से आप बल्गेरिया गए, कैसे गए? वो क्वेश्चन है. उन लोगों ने भेजा था. भगवान महावीर ने भेजा. हाँ. Seriously? स्पेस का काफी अच्छा है कॉलेज. प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. So I am in this space since I was in 4th standard, and I appeared for the space Olympiad, and I got first rank when I in Gujarat. Then I started building rockets. I was not having any knowledge about equations and calculations, so I was building randomly. Then afterwards, I wanted to go in aerospace engineering, but I was not so much good at studies. I got 52% and I failed in 11th. But even then, I was knowing my passion. So I continued my work. I continued all the projects that I was building. Then when I came to the college, I was selected for for a workshop in Space Application Center, and it was conducted by the director of ISRO. So it was for the first time when I was going to meet the ISRO. Tomorrow also I am going ISRO only. So after that, I continued making different projects and my research work, but I didn't publish any paper yet. But currently, last month, I published my first paper, and it was vertical landing rocket technology, and that is developed by American till now. But first time, I am going to bring this technology in India. So are you going for any patent or something? Just now, there are no plans for a patent. But currently we are a team of 30 members who are working on that. Okay. So currently we are concentrating on making the prototype, and we are going to test it in December in Bangalore. So you also teach 300 students? Yes, I conduct seminars and I am a motivational speaker. So I conduct seminars, and the students who are interested in space technology, and irrespective of their financial condition and their marks, they can join my club anytime, and then we discuss different projects, and then we build small projects on smaller scales, like small model rockets, and then we launch it every Sunday. Okay, so what do you do to market your thing? I made a Facebook page, and then I just conduct seminars, and by seminars the students come to know about my club. Cool. Great to know you. So you are doing a great work. Thank you, sir. So don't tell me, sir. I am also. I think. What is your age? 20. 20. Okay. So I am 22. I can only sir. Okay. So I am also a graduate. I graduated last year. So why we are here? Because we wanted to discuss something which is related to independence. Okay. So what we as a community have been doing is we are doing events since last 10 months. Okay. So now why we are doing events? So while we were starting up, okay, we as a startup were starting up, we went to a lot of organizations, we met a lot of people, okay. But we found that in Surat specifically, while you are starting up, you do not get the platform what you get in different cities like Ahmedabad itself, Delhi, Bangalore, Mumbai, Pune, okay. So this platform is missing. So what we started doing is we started doing events, and we started gathering the responses people were facing, or the issues that people were facing related to startups, okay.
Then gradually what we did is we wanted, startups came to us, they told that information मिल रही है हमको सब कुछ मिल रहा है पर हमको direct help नहीं मिल रही. So we also did a startup pitch fest called thing, okay. In that we invited 15 startups that pitched their ideas and got top 3 startups को हमने prize monies भी दी. Okay. Now we are into a phase where we want to expand in such a way that we want to get to people, okay. We do not want people to come to us, we want to get to people. So now we are planning to go to colleges, now we are planning to go to cafes like this, okay, and have the group discussion so that people know us, okay. And by this we can get our mentors, जैसे आप हो अभी तो, if somebody comes to me and tells me कि मेरे को ये interest है, I can obviously forward that person to you. So this is the plan, this is the vision we pursue, okay. So today's discussion is all about, okay, if you as a youngster, if you as a person in the city, what do you feel after, if you have been part of this ecosystem or if you have been part of this city, what do you feel, your idea, if you share your idea with someone or if you share your idea within the city, do you feel independent enough कि नहीं वो share कर रहा हो, वो execute हो रहा है. So we want everybody to speak their point out and we can then conclude something कि हाँ कुछ ecosystem बन रहा है, कुछ ecosystem नहीं बन रहा है, क्या stage पे है, क्या stage पे नहीं. So anybody can start. I want to share a point that by these events we are able to, this is a very positive change in our society, in our city especially. ये सारे इवेंट्स करके हम लोग एक क्लास तो एटलीस्ट गैदर कर ही रहे हैं. सो लाइक जैसे लाइक माइंडेड पीपल कैन मीट एंड डिस्कस देयर आइडिया, बट मास को कैसे अपील करना, वहाँ पे आई फील कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. क्लास को आई कैन अपील बट मास को कैसे. Anybody else? कोई बोलेगा नहीं तो मैं तो बुलवाने वाला हूँ. तो चुप बैठने से मतलब नहीं है. See, what I would like to say is when I first came with my idea, I sent the messages to everyone on WhatsApp, everyone on Facebook, and I had a really hard time getting people to get in my team. And then I was like, that time I had not met Anand, so I was very confused that what can I do? I'm just a single person. So that was the most difficult thing I faced. But then I met the Surat Startups team and they helped me out. But still I feel is that the students here, they don't really have the startup thing in their mind. They are just job oriented people, most of the people here. So that there must be a change in the mindset. That's what I feel. Because if working, I'm not against working in a job, but see, if you are getting to work in a startup, you get to work in some new culture and you can be a part of a new company, and that's very challenging. Although the pay options will be less, but it's much inspiring and it's a very good to be a part of that type of company. And I had a very hard time. Still today, I have stopped telling people to join me, but still I feel that if the classmates or my friends, if they had this type of knowledge that what is a startup and some more examples of startups, then it would be somewhat helpful for me. Anybody else? Students, they are not ready to take risks. They are afraid of being unique. They are afraid of being unique. They are thinking about the people, what people will be talking about them. There's a simple human tendency to mix with the people. Yes. Everyone wants to, सबको मतलब ऐसा लगता है कि मुझे अलग नहीं होना किसी से. किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी से अलग हूँ. सबको मिक्स होना है, ये गलत बात है. Especially भगवान महावीर. Yes. भगवान महावीर, it's so difficult, सबको ऐसा है कि जो 10 लोग कर रहे हैं मुझे वही करना है. अगर आप नया कुछ लेके आओगे कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा. ऐसा एक्चुअली सभी कॉलेजेस में ऐसा होता है. हाँ. कि मेरी जर्नी 2011 में मैंने MBA पास आउट किया है LPU से. मैं सूरत से बाहर इसलिए निकला कि मुझे कुछ दूसरा कल्चर जानना था. मैं MBA करने गया था, वैसा नहीं है. आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब. लोग साउथ में जाते हैं, मेरे सर्कल में से मोस्टली साउथ में गए, तो मैंने सोचा मैं नॉर्थ में जाऊँ. तो मैं इसलिए LPU में गया था. वो लोग यहाँ पे एडमिशन्स के लिए आए थे. तो 10,000 में मैंने एडमिशन लिया था. मैंने एक्चुअली कॉलेज में पैर भी नहीं रखा था. तो ये एक्चुअली मेरा कहना ये है कि अवेयरनेस नहीं होती लोगों के माइंड में. देन आफ्टर मेरा प्लेसमेंट्स भी हुआ था. प्लेसमेंट्स में दूसरा क्या कि मैंने पंजाब का नंबर लिया था, फिर गुजरात आया तो गुजरात का नंबर लेना पड़ा. फिर रोमिंग में मेरा प्लेसमेंट भी छूट गया.
I was selected in TCI, Transport Corporation of India Limited. Out of 121 student 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उसमें से मेरा 1.5 ईयर के बाद लोगों को पता चला कि ये नाम का कोई बंदा है। पर मेरी यूनिवर्सिटी में भी मैं बात करूँ, यहाँ पे ये कल्चर है, वहाँ पे भी कोई भी फेस्ट होता था तो भी इवन सिंगल कैंपस था 30,000 स्टूडेंट का, 1,000 तो भी लोगों को वही टेंडेंसी सभी जगह देखने को मिलेगी कि वो ना લેહમેન લેંગ્વેજ की मैं बात करूँ कि एक गेटू जाए तो पाछળ બીજું गेटू જવાનું છે, એ રહેવાનું છે, પણ યુનિકનેસ ક્યારે આવશે કે જ્યારે તમારો અંદરનો એક ફિયર છે ને નીકળી જશે પછી બધું થશે। જ્યારે તમારો ફિયર નહીં બહાર કાઢો, મને હવે હું લેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ વાત કરું 2011 આ બંધ જ નહીં થાય આ વસ્તુ। તમે ગમે એટલું પેલું કરશો ને કે સ્ટુડન્ટનું માઇન્ડસેટ ગ્રુપમાં ફ્રેન્ડ છે ને, हाँ तो फ्रेंड જ છે, એટલે ફ્રેન્ડ પાછળ જવું છે તો એ એવું રહેવાનું છે। એક લેહમેન લેંગ્વેજમાં વાત કરું તમને, પછી આ લેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ વાત કરું કે મારે કોઈ સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કરવું છે, 4 વર્ષથી જોબ કરવી છે, પછી તમે કોઈ એક દોરમાં આવી જાઓ ને, કાં તમે જોબમાં આવી જાઓ કાં તમે પહેલેથી જ રિસ્ક લઈ। જો તમે સ્ટુડન્ટ છો તો હું એટલું જ કહી શકું કે તમે પહેલેથી જ રિસ્ક લઈ, જોબ તો પછી બી મળશે, 1 વર્ષનો તમે ગેપ લેશો પછી બી જોબ મળશે। ट्रू। जॉब से हम क्या सीख सकते हैं कि वो एक सिस्टम में अगर हम रहते हैं पहले साल भर 2 साल भर वी एडॉप्ट टू दैट सिस्टम और हम समझते हैं सिस्टम क्या होती है, कैसे बना सकते हैं। हमारे ऊपर 2-3-4 बॉस होते हैं अलग अलग टाइप के, कोई बॉस होता है, कोई लीडर होता है और कोई कुछ भी नहीं होता है। तो वो हम थोड़ा देखते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत सीखते हैं और थोड़ा सीखने के बाद ही हम कुछ अपना कुछ स्टार्टअप करें तो डेट क्रिएट सम चेंज कि हमको कुछ अभी कुछ पता ही नहीं है और हम सीधा स्टार्टअप कर रहे हैं। वी कैन नॉट डील विद अवर डाउनलाइंस कैसे बात करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे आगे जाना है, वो हम डायरेक्टली नहीं सीख पाएंगे। कुछ होते हैं केसेस कि चलो बचपन से ही आगे बढ़ गए, देयर आर रेयर केसेस, बट जो होता है बेसिकली क्या होता है कि आप अगर कोई जगह पर काम करो तो यू विल गेट ए आइडिया। अभी आपने देखा ओबामा की लड़की एक स्टोर में काम कर रही है, वाई? सूरत का एक डायमंड टाइकून है, उसका लड़का साउथ इंडिया में जॉब कर रहा है, वाई? अंबानी ने खुद अपनी लड़की को अपडेट भेजा था एक स्टोर मैनेज करने के लिए, वाई? बिकॉज दे नो दैट कि डायरेक्ट उनसे नहीं हो पाएगा, दे हैव टू डील विद कस्टमर्स, दे हैव टू डील विद पीपल, देन ओनली द इंटरेक्शन जो होगा ना डीलिंग का वो बड़ा पावरफुल होना चाहिए बाद में। सो दैट वाई आई थिंक कि थोड़ा बहुत टाइम जॉब करना इट्स गुड डील। कहीं भी आप जॉब करो मगर यू डू ए जॉब। अगर आपका फैमिली ऑलरेडी बिजनेस है तो दैट्स फाइन, आप आपके पापा से सीख लोगे कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करते हैं, वो अपने नेचर में आ ही जाएगा स्टार्टिंग से ही कि यूर फैमिली विद दिस टाइप ऑफ गाइस और आपको वो नेचर में आ जाएगा। बट बेसिकली मैं खुद डिप्लोमा किया, बाद में एसआर में कैंपस में सिलेक्ट हुआ, आई वर्क 5 ईयर विद एसआर एंड नाउ स्टार्टअप दिस कैफे हो। तो थोड़ा चेंज लगता है कि नहीं एक तरह से सही है, मैं एक सिस्टम में गया, वहाँ कुछ सीखा और फिर कुछ अपना इम्प्लीमेंट किया उसमें। So these things can conclude 2 things as well कि इंडिया में एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि बाहर जाना पड़ता है लोगों को ना, एंड सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर मैं मुकेश अंबानी का लड़का हूँ तो मुझे तो उन्होंने भेज दिया, मुझे जाना पड़ा, तो वो इंडिपेंडेंस नहीं है। सेम वो सूरत डायमंड वाला कि उनको जबरदस्ती भेज दिया, तो इंडिपेंडेंस नहीं है। और हमारा टॉपिक यहाँ पे इंडिपेंडेंस है। नहीं इंडिपेंडेंस है वो लोग, पर मेरे ख्याल से वो उनकी चॉइस नहीं थी, जहाँ तक मैंने पेपर्स में पढ़ा था और जहाँ तक जिस हिसाब से वी नो वो उनकी चॉइस नहीं थी। एंड इफ वी कंपेयर टू डिफरेंट सिटीज, और अगर बैंगलोर वगैरह से कंपेयर करूँ या फिर अब मैं बाहर इंडिया के बाहर जाके कंपेयर करूँ तो यहाँ पे उतनी इंडिपेंडेंस है लड़कों के पास कि भाई वो खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। एंड ऑल्सो अ पॉइंट विच कि जितना अर्ली यू फेल, जितना अर्ली यू टेक द रिस्क, the earlier you learn. So suppose at 15 I get out of my family, I get out of my home, I took my own decisions. So at least 19 तक गिर पड़ के 20 तक मैं कुछ तो सीख जाऊंगा कि खुद में कुछ कर सकता हूँ। That's true। अपने यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि अपने मतलब शादी हो जाने तक लोग पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, तो खुद का यूएस में वो लोग खुद के घर ले लेते हैं, मतलब आफ्टर 18 दे आर ऑन देयर ओन। सो मतलब वो एक काफी एक डिफरेंस होता है उसमें। बेसिकली क्या है, हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर नॉट अ नर्चरिंग काइंड ऑफ थिंग, और ना उनका वो नर्चरिंग नहीं है। अगर आप आवर पेरेंट्स ट्रीट अस एज रिस्पांसिबिलिटी। हाँ तो मतलब फॉर एग्जांपल फॉर गर्ल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मतलब
उनको तो मतलब जन्म हुआ शादी तक शी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कुछ भी करे इनफैक्ट कमोडिटी कन्यादान कर देंगे। So it's very irritating, you know. I don't think so कि अब ऐसा रहा है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फैमिली में मेरे फादर ने मुझे फाइनेंशियल से लेके जो मेरा स्टार्टअप है, मैंने जो स्टार्ट किया है किसी, मेरे फादर ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। इवन वो वहाँ पे आके बैठते भी है, भले उनका बिजनेस है फिर भी वो आके बैठते हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत मुझे काम लगता है। प्लस जो भी मेरा एजुकेशन साथ में चल रहा है, प्लस मैं उसको भी मैनेज कर रही हूँ, तो वो मुझे फुल्ली सपोर्ट करते हैं, मेंटली से लेके सारी चीज़। रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं है। नहीं मतलब अगर ऐसा होगा तो डू यू थिंक दे विल हेल्प? डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, कैंडिडेट को किस टाइप का है। एग्जैक्टली यहाँ पे एक पॉइंट आगे रुक गया। बट उन्होंने मुझे इतना तो कैपेबल बना ही दिया है कि मैं ऐसे कोई बंदे को लेके नहीं आऊंगी ना कि प्रॉब्लम नहीं लेके आऊंगी। सी दैट इज नॉट चॉइस। ओके, चॉइस आपको कैसे पता वो सही है गलत है? सो चॉइस इज चॉइस। सर नो सर एज के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस आ ही जाता है कि लाइक व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। प्लस अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो दूसरों का देख के तो हम सीखते ही हैं। कभी ऐसे भी मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी ना, तब मेरे ट्यूशन के सर हैं, ही जस्ट टोल्ड मी कि हमें कभी गलती करो और सीखो, उससे बेटर कोई और गलती कराए ना उससे सीखो। टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, कोई गलती करे और उसमें से सीखने में टाइम बहुत निकल जाता है। और नॉर्मली आप नहीं मतलब इतना अवेयर रहो, इतना अवेयर रहो। या फिर हाँ कम्युनिकेशन या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस। देखो दो चीज हो सकती है, या देखो और सीखो या करो और सीखो, दो चीज है। I just want to tell you that in Surat level there is no setup for corporate level like जो बॉम्बे पुणे वगैरह में जहाँ पे मेट्रो सिटी में अवेलेबल है, यहाँ पे वो कॉर्पोरेट सेटअप नहीं है। सो वी कैन स्टार्ट विद लाइक जो भी हमारे पास जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इट इज बेस्ड कि हम लोग खुद से कुछ ना कुछ कर सकें। एंड वी आर यंग, तो बट ऑब्वियस है जो पहले की पीढ़ी कर चुकी है बिजनेस। यहाँ पे देखो टेक्सटाइल जो पहले से चला आ रहा है वही के वही ट्रेडिशनल बिजनेस ही यहाँ पे आता है पहले से। सो अगर हम यंगस्टर कुछ अच्छा नया लेके आते आइडिया, वी हैव लाइक कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर है, ये है, वो कुछ भी ढूंढ सकते हैं, एनीथिंग, तो कुछ ना कुछ न्यू लेके आ सकते हैं। इनफैक्ट वो सारी नई चीजों का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऑब्वियसली वी हैव टू सर्च कि अब्रॉड में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए एंड देन इम्प्लीमेंट। बेसिकली अभी सूरत में तो मैंने नोटिस किया अभी जो फैशन डिजाइनिंग की लाइन है उसमें थोड़ा बहुत बूस्टअप मिला है। इवेंट्स करने की जो हुआ है, रेट ऑफ रेशियो जो बढ़ा है तो थोड़ा बहुत बूस्टअप हुआ है। तो जो थोड़ा बूस्टअप मिल रहा है ना उससे थोड़ा पिकअप हो रहा है। इट्स नॉट लाइक द थिंग के इतना नहीं हो रहा है। अभी एशियनाइट्स में जो लोग उन लोगों ने भी मानो कि बहुत सारे इवेंट्स बढ़ा दिए, साल भर साल वो लोग कुछ ना कुछ नया बन डाल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत सिस्टम अभी चेंज हो रहा है कि अभी यूथ जो है थोड़ा वो हिसाब से आगे जाने का कोशिश कर रहा है। अभी इतना है कि यूथ जो है यहाँ का तो थोड़ा बहुत ट्राई करा कि कुछ नया करे, कुछ अलग करे। Sumit, youth. बोलो। So he is the youngest person in the room. बोलना तो पड़ेगा। यंग और तो बोलेगा नहीं। यंग बात आई हो। मिलन सर। पहले तो मैं मैम से एग्री हूँ कि अभी ऐसा कुछ नहीं रहा कि पेरेंट्स मतलब बेटी को नहीं पढ़ाएंगे और फिर कुछ करेंगे। सर सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू अगेन। सर पढ़ाते सब लोग हैं, पढ़ाते सब लोग हैं, बिल्डअप सब लोग करते हैं, पर वो जिस पॉइंट से चेंज होता है मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब तक इंडिया में इंटरकास्ट मैनेजर स्टार्ट नहीं होंगे ना तब तक कम्युनिटीज बिल्डिंग जब तक नहीं कर पाएंगे। सर नहीं वही सर पॉइंट वही आता है। सर मेरे हिसाब से पॉइंट वही आता है जब तक इंटरकास्ट मैरिजेस इंडिया में जिस दिन से इंटरकास्ट मैरिजेस ओपन हो जाएगी उस दिन से इंडिया जो रेस लेगा ना, आई कैन गारंटी यू वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ या फिर सबसे फास्टेस्ट कंट्री हमारा बन सकता है। लेकिन वो माइंडसेट ही नहीं आता। अभी क्या होता है सर, अब इंटरकास्ट होने के लिए काफी जो रेसिज्म है या फिर सर वो हमारे माइंड में है सर, रेसिज्म और वो सब एक वर्ड्स बना दिए जो होते नहीं है एक्चुअली, वो एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करते सर। वो रेसिज्म क्या होता है, मैं तो अगर मैंने वर्ड पढ़ा नहीं था शायद मैं उसको समझता नहीं, तो रेसिज्म एक वर्ड बना दिया और मेरे दिमाग में ये काला है गोरा है इसलिए वो, वरना तो फिर होता है मतलब करता है। लेकिन
आज भी इंडिया में देखें तो 100% ऐसा नहीं है कि कोई इंटरकास्ट नहीं करता, 30-40% तो करते ही है। बट ऐसे भी लोग देखे हैं जो पेरेंट्स नहीं अलाउ करते फिर भी करते हैं। हाँ। तो वो इससे हम पेरेंट्स अलाउ करें उसकी बात कर रहे हैं सर, ऐसे मैंने पर्सन को भी देखे हैं जो इंटरकास्ट करके घर में बैठते हैं। तो इट इज नॉट रिलेटेड विथ आवर स्टार्टअप, तो ये चीजें पूरी अलग है। हम इंडिपेंडेंस टॉपिक पे बात कर रहे हो, वो सब जितना डिस्कशन निकल रहा है उतना निकल रहा है। एक्चुअली मेरे घर की बात करूँ ना, तो मेरी जो सिस्टर है वो तो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस हो गए तो फर्स्ट ईयर में उसकी शादी हो गई, ठीक है, ओके। और बाद में जब सेकंड ईयर कर रही थी तब वो शायद प्रेगनेंट थी, बाद में समथिंग ऐसा कुछ था। बाद में भी और वो कहाँ रह रही थी, सिटी के बाहर रह रही थी। उसने BA कंप्लीट किया, MA किया, B.Ed किया, M.Ed किया और अभी भी कुछ 87% लेके आई और भी फिर से मतलब 1 साल जॉब किया, फिर उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ, फिर से जॉब करिए, उससे कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा, जबकि वो सिटी में भी नहीं रहती है, वो कॉन्फिडेंट ग्रो कर रही है, बच्चों को भी पढ़ा रही है अच्छे से, मतलब सब फ्लैट है। मेरी वाइफ तो उसने B.Tech किया था, अभी वो M.Tech करी, अभी उसका M.Tech खत्म हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि सूरत एक ऐसी इकोसिस्टम है जहाँ पे डॉक्टर जयरा यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे फ्लाइट कनेक्टिविटी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि सूरत में बिजनेस बहुत है, लेकिन ये जो बिजनेस के टाइप है वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। यहाँ पे जो दादा करता था आज वही कर रहा है, यहाँ पे कॉर्पोरेट हाउस नहीं है तो डेलीगेट्स नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ के जो मर्चेंट है जिनको अहमदाबाद जाना है, बड़ौदा जाना है, तो वैसे ही सब रहेगा, कॉर्पोरेट कल्चर नहीं, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। तो वंस अगेन अगर लेडी पढ़ेगी तो जॉब कहाँ करेगी, कॉर्पोरेट करेगी, वो टेक्सटाइल के वो वर्क स्टेशन में थोड़ी ना काम करेगी। यहाँ पे IT भी कितना है, IT का बहुत कम, कुछ नहीं है। तो हकीकत ये है कि हम कम्युनिटी को थोड़ा दोस्त दे, उससे बेटर है कि यहाँ पे वो उनको उनके लिए एक्सपोजर ही नहीं है। अगर अभी मैम कुछ क्या जॉब करेंगे, कहाँ करेंगे, थोड़ा बहुत अगर मैनेजमेंट का फाइनेंस का अगर उनको इंश्योरेंस में जॉब मिल जाए, ओके, बाद में आफ्टर इंश्योरेंस अगर 5 साल में जॉब किया, 6 साल अगर आपको अपडेट होना है कहाँ होंगे, बैंक को आपको मिलेगी और वहाँ पे आप सेचुरेशन लग जाएगा। तो प्रॉब्लम वन से ये अपनी इकोसिस्टम कर दी है, यहाँ पे ट्रेडिशनल फ्लो ही है, कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, लेकिन जॉब नहीं है, यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। अरे 15,000 पे करते हैं, SVJ में मैंने 5 महीने जॉब किया, और MBA को 7,000 मिल रहा है, MBA को 7,000 मिल रहा है, और जो हमारे घर में कारपेंटर आता है मंथली 35,000। और एक चीज ये भी मैंने नोटिस की कि सबको ऐसा लगता है कि भगवान महावीर में ये प्रॉब्लम है, स्टेट में होगा, ऑनेस्टली मैं ये बताऊं IIT दिल्ली वाला भी यही बोलेगा कि IIT में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ये सारी जगह में, फिर मैं IISc में भी जाकर आया, वहाँ पे क्या होता है कि रिसर्च वाले तो वो करेंगे, लेकिन जो कुछ अच्छा रिसर्च हुआ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, उन्होंने बोलेंगे मैंने ये जनता कर दिया। ऑनेस्टली ये लोग कुछ भी नहीं करते। आपने कभी देखा कि इंडियन की ये पेटेंट हुई, अपन ने ये दवा के पेटेंट दी, अपन ने ये नई टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कुछ नया ट्राई करें, हमें सिर्फ वही चाहिए कि अपने सिर्फ रीयूज में हमने हमेशा टाइम स्पेंड किया है, सिस्टम में सस्टेन इन्वेंशन में हमने कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, हमने सब कुछ रीयूज किया। स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप का मतलब इनोवेशन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। जैसे भाई साहब ने बोला कि जॉब करना चाहिए ताकि आपको सिस्टम पता चले। जो लोग पावर लूम चला रहे थे 25-50 साल पहले जिन लोग पावर लूम चला रहे थे, उनके हाथ के नीचे जो जॉब कर रहे थे वो जॉब छोड़ के पहले काम सीख के 4-5 साल में काम सीख के वही सेम सिस्टम वही पैटर्न के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं और वही बिजनेस कर रहे हैं। उनके हाथ के नीचे जो आए वो भी सीख के निकल रहे हैं, सेम कर रहे हैं। साड़ी ड्रेस और उसके अलावा कुछ बन नहीं रहा है, क्यों नहीं बना रहे है ना, पर्दे के कपड़े हैं, सोफा के कपड़े हैं, जीन्स है, टी-शर्ट से, दूसरा कुछ लाओ, इनोवेशन लाओ, कुछ नया। तो ये जो माइंडसेट है कि जॉब करने के बाद ही हम काम सीख पाएंगे और कुछ नया ला पाएंगे तो नहीं करना। जॉब सीखने के बाद वही पैटर्न सीख के वही कर रहे हैं, इनोवेशन ला ही नहीं रहे हो। और एक बार उसको आदत पड़ गई ना 10 to 5 की जॉब की और 10-12 हज़ार की पगार की आदत पड़ गई तो उसमें से बाहर ही नहीं निकलता, निकलता ही नहीं। ये माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट नहीं था बेसिकली। हाँ लेकिन वैसे जो लगा वो बोला, मेरा माइंडसेट नहीं कि नहीं करना चाहिए। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, सही बात है। और एक बात, वी आर लैकिंग मार्केटिंग स्किल्स। इंडिया के लोग जो है ना मार्केटिंग स्किल्स में एकदम ही पीछे है। मुझे भी तकलीफ पड़ती है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मुझे भी बहुत तकलीफ पड़ती है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, पूरी दुनिया का 90% बिजनेस डायमंड का बिजनेस सूरत के अंदर है, इंडिया के अंदर है, और पूरा इंडिया का 90% सूरत के अंदर।
ठीक है, फिर भी कौन सी ग्लोबली रिनाउंड ब्रांड बताओ आप डायमंड की, स्वरोस्की देखो, फिर डीबैस देखो, दुनिया की नंबर 1 ब्रांड है, उनका कटिंग पॉलिशिंग सूरत में ही होता है, ठीक है, उनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, बिजनेस का बेस ही नहीं है, सब कुछ उनका काम सूरत में हो रहा है, फिर भी उन लोग ग्लोबली रिनाउंड ब्रांड है, हमारी क्यों नहीं? सूरत की एक भी ब्रांड का आप नाम बता दीजिए, वो क्यों नहीं है? वी आर लैकिंग बेसिक स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है हमारे पास, इनोवेशन स्किल्स भी नहीं है, मार्केटिंग स्किल्स भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे तो कुछ इनोवेशन की बात करना पड़ेगा हमें। एक्चुअली क्या है कि अभी इंडिपेंडेंट से बात करें तो स्टूडेंट स्टेज में होते हैं स्टूडेंट, तब आइडियाज़ बहुत रहते हैं, आइडियाज़ होते हैं तो कॉलेज में उनको उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ये मेन है आज की तारीख में। जहाँ पे हम कहीं पे भी देखो, सूरत की बात करें, हम सूरत स्टार्टअप है, सूरत की बात करें तो सूरत स्टार्टअप में SVNIT तो वो प्लेटफॉर्म्स इतने प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी कॉलेज भी होगी गुन चुन की 4 से 5 कॉलेज, बाकी देखी जाए तो कॉलेज दूसरी कॉलेज भी में भी आइडिया तो जनरेट होते ही होंगे, वो साइकिल ही ऐसा होता है कि उस टाइम पे लोगों के माइंड में ज़्यादा आइडिया आते हैं, पर उनको उस टाइम पे वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं पहली बार। परंतु अभी इंडिपेंडेंट स्टूडेंट उस टाइम पे इसलिए फील नहीं करता कि अपना जो क्या कहते हैं उसको, जो स्टडी में कोर्सेज है वो उसमें इंडिपेंडेंट नहीं, कोर्सेज में वो इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि उसको वो ग्रेजुएट होना है, वो वहाँ पे उसने एजुकेशन लिया तो उसको ग्रेजुएट होना है, तो वो पहले वो उसकी प्रायोरिटी वहाँ पे सेट होगी, ना कि वो अपने आइडिया पे सेट करेगा। फिर वो ग्रेजुएट हो गया तो मास्टर्स या एंट्रेंस एग्जाम में फोकस करेगा, फिर भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि पहले तो उसको ग्रेजुएशन में उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि भाई उसको आइडिया कहीं पे भी किसी को। दूसरा क्या होता है, उस टाइम पे अगर कोई भी आइडिया शेयर करते हैं, देखो स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स निकाली है, पर आज भी मुझे नहीं पता है कि क्या इंडिया में इतने सब्सिडी स्कीम्स है ना जो कहीं पे नहीं है, लेकिन किसको पता है, किसी को भी नहीं है। मेन वहीं पे लाइक कर रहे हैं कि अवेयरनेस, कि भाई हमें एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म बनाए कि एक स्टूडेंट्स के लिए कि भाई ये एक्चुअली ये स्कीम्स तुम्हें ये काम करोगे तो यहाँ पे बेनिफिट, सब्सिडीज कितनी न्यू स्टार्टअप्स के लिए आज सब्सिडी, और उसका ब्रीफ किसी को नहीं पता, इवन कंसल्टेंट्स के पास भी जाएंगे तो भी उसको उसका ब्रीफ पता ही नहीं। सब्सिडी मानो कि आप मानो कि मुद्रा लोन ले लो, मुद्रा लोन तो सब्सिडी देनी गवर्नमेंट, आप जाओ बैंकों में, नो विल गिव यू मोर देन 50,000 रुपीज फॉर स्टार्टअप, नो वन विल गिव, और वो भी कौन देंगे कि ओनली SBI एंड BOB, बाकी सब जगह टाइप रखा है, हमको कोई देगा नहीं। मैं बैंक्स के साथ डील करता हूं, क्योंकि ये जितने भी लोन लेते हैं NPA बढ़ा देते हैं। हाँ। अभी मोदी जी ने तो बोल दिया कि इनको मुद्रा दे दो, हाँ। ठीक है, अब पैसा दे दिया, वो पैसा नहीं भरेगा, नाम किसका खराब होगा, वो ब्रांच का होगा, RBI में रैंकिंग उसका कम होगा, तो वहाँ पे ऐसी इश्यू आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब्सिडी को कॉन्सेंट्रेट करके स्टार्टअप या बिजनेस या फिर कुछ नया मत सोचो, वो तो होगा तब होगा, वो आइडिया टॉपिक है, पहले कंसेप्ट पे काम करो। जब से मैं मतलब आई थिंक 4-5 मंथ से मैं एक्टिव हूँ, देख रहा हूँ क्या कौन कुछ क्या कर रहा है, ठीक है, मुझे निपुण का आइडिया अच्छा लगा, हाँ कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा है, ऐसा नहीं कि ई-कॉमर्स कर देना है, डायरेक्टरी प्रोवाइड करनी है, ट्रेड करवा देना है, ऐसा नहीं, जिसने कुछ प्रॉब्लम साइड पे वर्कआउट किया। भाई साहब को आई थिंक आप चैम्बर में आए थे, मैंने सुना था, तो मतलब आपका रिसर्च इंटेंसिव में तभी देख लिया था कि हाँ कुछ आपको क्या लगता है कि ये रॉकेट बनाना है या फिर एरोस्पेस में जाना, तो इट्स नॉट इजी जॉब, क्योंकि इसकी मार्केटेबिलिटी अभी कुछ भी नहीं है, इसमें से उनको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, और अपनी गवर्नमेंट कितना प्रमोट करने वाली है वो शायद आपको इतना नहीं पता है, उनका अच्छा बोल रहा है, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है नॉलेज के लिए, और कितना मतलब हंगर होनी चाहिए अंदर, मतलब कुछ मिलने वाला नहीं, फिर भी मेहनत करनी है, जब जाके ये बंदा सक्सेस होगा तो वो कुछ नया कर देगा, तो वो पैशन चाहिए ना। और एक पर्सन सक्सेस हो गया, उसने ओयो बना दिया और मैं बोलूँगा चलो मैं भी ओयो करूँगा, और स्टूपिडिटी यूज करवाना नहीं होना चाहिए, कुछ नया टॉपिक लाओ, कुछ नई प्रॉब्लम फेंक पे कुछ काम करो, एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्यूशन, तभी वही बिजनेस है। सूरत में कॉर्पोरेट भी आएगा, तभी लोगों को दिखेगा, अभी हम सबको इतना इजी नहीं है कॉर्पोरेट सूरत में आना, वही तो हमें करना है, कल्चर ही वही है ना, अभी बात वही हुई कि वही यहाँ पे क्या है, वही काम एक तो जो एक लेवल है, जो हमारे पेरेंट्स की हम बात करें तो वो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एकदम फुल डीप है, जो हम यंगस्टर्स हैं, हम लोगों को करना है, आइडियाज है,
लेकिन कोई है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ वही के वही है कि अभी तक जितने भी जायंट बिजनेसमैन या कुछ भी बने जिसे हम मानते हैं पूछते हैं, उनको कभी भी पैसा सामने से मिला नहीं था। अगर स्ट्रगल की ना तभी वो आ गया है। और वो होना चाहिए ना, कोई बंदा आज मैं उठ के बोलो मुझे अपनी कंपनी डालनी है, कोई मुझे सपोर्ट करो, ऐसे कोई थोड़ी ना। मुझे खुद ने किसी तरह नहीं सपोर्ट किया। उसमें क्या है, जैक मा के बारे में सुना होगा, जब उसने अलीबाबा लॉन्च किया था, पहले 4 साल तक उसका कोई प्रॉफिट नहीं था, 5वें साल में उसने $1 का प्रॉफिट किया था, और आज वो चाइना का रिचेस्ट पर्सन है। तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल, रेवेन्यूज देखना नहीं चाहिए, मतलब प्रॉफिट्स और ये अर्निंग्स कितना होगा मेरे स्टार्टअप्स में। स्टार्टअप्स बेसिकली वो नहीं होता। जब मैंने सोचा था स्टार्ट करना, तो एक आइडिया कैसा आया था कि एक लड़की थी छोटी सी, जिसने कहा कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, लेकिन उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और सेकेंड थिंग, उसने मुझे एक चीज़ बताई कि मैंने ऐसा सुना है कि इस फील्ड में सिर्फ IITs वाले जाते हैं। तो मुझे एक आइडिया है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को, कि उनको भी अगर कुछ सीखना हो तो मैं भी सीखते सीखते उनको सिखाऊंगा। तो ऐसे हमारा क्लब स्टार्ट हुआ था, और जैसे हमने ग्रेजुअली हमारे क्लब में ऐसे माना लो कि एक मंच में 2-2 जन ऐसे जुड़ते, 3 साल हो गए मेरे क्लब को, और आज ऐसे देखने जाऊँ तो 300 स्टूडेंट्स ऑफिशियली हमारे क्लब में ज्वाइंट है, और इनडायरेक्टली भी देखे तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। तो मैंने तो अभी तक नहीं सोचा कि मैं उसमें से क्या अर्न करूंगा, कि क्या आगे जाके कमाऊंगा, क्या। हाँ, और एक चीज़ है कि अगर मेरे क्लब में से कोई एक भी स्पेस एजेंसी में गया फ्यूचर में, तो मेरे लिए प्राउड की चीज़ होगी कि मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे वो कुछ सीखे। और सारे इतने डेडिकेटेड है, उनके दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज़ है कि मैं समझता हूँ कि जैसे हम बड़े होते हैं हमारी क्रिएटिविटी कम होती जाती है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने क्लासरूम में एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था बोर्ड पे, और मैंने प्राइमरी स्टूडेंट्स को बताया कि उस ट्राइंगल से कोई ड्राइंग बनाओ। तो मैंने देखा कि जब प्राइमरी के स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने एलियंस बनाए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बनाई। जबकि सेकेंडरी में वो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या बनाया, मोस्टली काइट्स और हाउस। तो तब मुझे पता चला कि जैसे हम बड़े होते हैं क्रिएटिविटी कम होती जाती है। उसका रीजन ये होता है कि लिमिटेशंस और बाउंड्रीज हमारे दिमाग में या तो हमने बनाई या तो किसी और ने। So basically you're not independent. Child psychology ऐसा कहती है। So जब आप स्ट्रगल और फेल करते हो तो आपका लर्निंग फेज ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आपकी टेंडेंसी नया तो वो कर पाएगा। जब वो मैच्योर हो जाएगा तब उसको सब कुछ समझ गया है, तो अब वो नए इक्वेशंस बनाने लगेगा, लेकिन नया सोचेगा। ओके, और प्लस जो दुनियादारी का फ्रस्ट्रेशन रहेगा वो सबकॉन्शियस में रहेगा हमेशा। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने बताया था कि हाथी के बच्चे के पैरों पे वो जंजीर बांध देते हैं और दूसरा एंड उसको एक पोल पे लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ट्राई, अभी बड़ा हाथी होगा तो आराम से तोड़ देगा, वो छोटा हाथी क्या करता है, बहुत ट्राई करता है, वो टूटता नहीं है। वो जैसे ही बड़ा होता है ना उसको ऐसे ही रखते हैं, तो क्या होता है, बड़ा होकर वो ट्राई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से वो देखा है वो टूटने नहीं वाला। जबकि यही वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जब मैंने भी ये सुना तभी मैंने वो एक्सपेरिमेंट सोचा कि सही में ये है कि जैसे बड़े होते तो क्रिएटिविटी कम होती है, और मैंने वो नोटिस किया, मैं भी शौक था। दूसरी एक चीज़ एक और मैंने देखी, जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे जो अपने बच्चे को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। वो उसको स्पोर्ट्स में भी, क्रिएटिविटी में भी, इसमें भी, एकेडमिक्स ये वो, तब जाके वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये एक फेज ऐसा है कि बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं क्या करूँ, मेरा टैलेंट कहाँ पे है। क्योंकि पेरेंट्स पहले के नहीं, अभी के पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, डांस में भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, तो बच्चा फिर अभी उसको एज ए जॉब ले लेता है। पूरा दिन का शेड्यूल देखे तो स्कूल, ट्यूशन, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस, एंड घर पे भी जाके मम्मा कुछ ना कुछ रखती है। हाँ, इतनी अवेयरनेस है, फिर भी पेरेंट्स कुछ ना कुछ तो रखते ही है। लाइक आपको तो यही करना है, आपको तो यही करना है, भले हम कितने भी एजुकेटेड हो जाए। मैम आपको अगर इसका अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस करना है तो ये गोयंका या फिर रायन, ये स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो फिल्म करते हुए डांस करें, कराटे करते हुए, वही तो। लेकिन बच्चे को किसी के अंदर टैलेंट नहीं कितना फ्रस्ट्रेट होता है। मेरे पास तो मैंने वो बच्चा सैमसंग नहीं पढ़ पा रहा है, जबकि वो 8 में पढ़ रहा है, और तक पास कैसे हुआ? उसके फादर को देख के इतना डरता है। उसके फादर मुझे बोलता है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों, चिल्ला के लिए उसको कुछ आता ही नहीं है। फिर मैंने वो बच्चे से बात की, प्रॉब्लम क्या है, बोलता है स्कूल अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छी है, बोलते हैं वो लोग प्ले करने ले जाते हैं, रोटी लाइन में ले जाते हैं, हमें किसी से बात ही नहीं कर सकते, सब डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। मैं बहुत थक जाता हूँ। वो मतलब उसका क्रिएटिविटी खत्म, क्या करेगा वो अगर डॉक्टर बन गया तो वो कैंची भी नहीं पकड़ पाएगा, ऐसा वो डॉक्टर बनेगा। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। मेरे पापा के साथ मेरा ये बहुत डिबेट होता है अबाउट फ्रीडम। तो वो बोलते हैं कि तुम जो हो ना,
हम सब वो एक पंखे की तरह है। हालांकि हमें हर डायरेक्शन में घूमने का फ्रीडम है, लेकिन एक सेंटर से, उसमें वो आपकी एक रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट है। आप हर डायरेक्शन में घूमो, लेकिन हाँ, यू कैन नॉट बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड आई कम्प्लीटली डिसएग्री कि वी कैन बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। व्हाई नॉट? आई वांट टू गो दिस। मैं क्यों पंखे की तरह, मुझे रैंडमली जाना, मैं पंखे की तरह नहीं घूमूं। सो दीज आर दी थिंग्स वो आजकल के यूथ में आना चाहिए। मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छा हाँ पेरेंट्स ने ऐसा बोला, लॉजिक थोड़ा अप्लाई करेंगे, थोड़ी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देखेंगे एंड एक्सेप्ट इट। सो टू क्वेश्चन, टू चैलेंज दैट इंस्टिंक्ट शुड बी डेवलप्ड। So there is a change in parents and in this society, but that change is to a limitation, to a thing कि उसके आगे नहीं बढ़ना है, बस इस यहाँ तक रहना है। उतना हम आपको, उतना हमारा माइंडसेट चेंज हो चुका है, पर उसके वो लिमिटेशन के अंदर ही आपको अपना फ्रीडम मिलता है। कितने के पेरेंट्स एक्सेप्ट करें? अगर मैं बोलूँ, मेरे तो पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, वो एक्सेप्ट नहीं जानकर चले जाओ। इमोशनल टॉर्चर। दूसरा अपना इंडिपेंडेंट आइडिया की बात करें, आज हम अपने आइडिया शेयर करते हैं, इतना फ्रीडम फील करते हैं, तो मोस्टली 90% लोग फील नहीं करते कि आइडिया मैं शेयर करूँ किसी के साथ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। 1 ईयर बिफोर सेम टाइम नवंबर में मैंने जॉब छोड़ दी थी और मुझे चालू करना था कि भाई मुझे इस पर वर्कआउट करना है। देन आफ्टर 3 months मैंने किसी को कहा नहीं और मैंने कुछ किया नहीं, फिर वापस मैंने जॉब चालू कर। तो फिर दूसरा क्या कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हमेशा ढूंढता हूँ कि कैसे किसी से बात करूँ। कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या, हर कोई वैसे इंडिपेंडेंट है कि मैं अकेला हूँ, वैसे इंडिपेंडेंट हूँ, पर किसी के पास कम्युनिकेशन गैप बहुत है। क्योंकि अपने पास सूरत में इतनी कम्युनिटीज नहीं है और कोई अपना आइडिया शेयर करना नहीं चाहता। अभी मेरा आइडिया मैंने फिर लास्ट वीक सैटरडे सूरत स्टार्टअप मैंने फेसबुक पे देखा कि ऐसे एक कम्युनिटी एक इवेंट्स का मैंने ज्वाइन किया। 2 दिन के बाद मुझे मेरे माइंड में ये सोच थी कि मैं अपना आइडिया पहले आनंद को बताऊँ कि नहीं, क्योंकि वो हर कोई यही सोचता है कि वो उसके बारे में फ्रीडम नहीं है कि अपना आइडिया किसी के साथ शेयर नहीं। फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस दूँ तो लोग आइडिया इज नोज मोनोपोली, कि आइडिया किसी की मोनोपोली नहीं है, आपके माइंड में जो है वो किसी और के माइंड में भी आ सकता है, और उसका एग्जीक्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो 4 दिन से हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे, आइडिया तो सभी के माइंड में आता है। तो मुझे आज तो मैं फ्रीडम फील कर रहा हूँ मेरा आइडिया शेयर करना, तो इतने फ्रीडम के साथ इतना आइडिया शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि मुझे अपने देखा जाए तो एक फूड चैनल रेस्टोरेंट ओपन करना, हेल्थी एंड हेल्थ फॉर उसके साथ पूरा फोकस हेल्थ पे है कि आज मॉर्निंग से लेके लोग इवनिंग तक सब ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब हेवी लंच और ऑयली खाते हैं, राइट। तो मेरा फोकस था कि मॉर्निंग में जो स्प्राउट्स और सलाड्स, देन आफ्टरनून में मिक्स सलाड एंड इवनिंग में डिपेंड्स किसको डिपेंड्स ऑन चॉइस। उनका किसी की मॉर्निंग में एक्सरसाइज होती है तो किसी की इवनिंग, तो उन लोगों को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। तो इससे मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ, आप उसका मुझे आज टेस्ट लेना है। टेस्ट यानी कि आपका फीडबैक कि क्या ये पॉसिबल है। देखो गूगल पे आप सर्च मारोगे तो ये सलाड स्टोर अवेलेबल नहीं है। हाँ, सबवे में जाओगे तो कॉस्टली 200 रुपीज़ 230 रुपीज़। इवन घर पे आप बनाओगे, एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये है कि मैं डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ सलाड को, राइट। आज कोई भी है डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट सिंगल बात करूँ तो मुझे चने इवनिंग में पानी में भिगो के मॉर्निंग में खाना है, तो मेरी डेली लाइफ में ये पॉसिबल नहीं। कोई भी सभी ने एक्सपेरिमेंट किया हो पर ये पॉसिबल, बॉयल करके भी डेली कोई नहीं खा पाए, पर उसका सॉल्यूशन है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। डायरेक्ट टिफिन सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। आप क्या करोगे?
कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं रेफरेंस में बेचूंगा वो बोलेंगे यार ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ऐसा सोचो कि अभी स्कूलिंग बहुत महंगा हो गया तो पेरेंट्स को पता है कि ये बच्चे लोग क्या खाएंगे कैसे खाएंगे तो उसके हिसाब से कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या जानी चाहिए कितना प्रोटीन जाना वीकली क्या होगा प्लान को करो और कुछ ये स्कूल ही सबसे कुछ इंटीग्रेशन करो ऐसा कुछ तो बेस्ट बन जाएगा और सक्सेस भी होगा। ये रेस्टोरेंट में जाना चाहिए या डिलीवरी मॉडल में जाना चाहिए? रेस्टोरेंट में पहले डिलीवरी में चाहिए फिर अगर अच्छा होता है तो आप एक आउटलेट पीजी में रहने वाले उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम पड़ता है खाने का। अरे मुझे खुद को पर्सनली प्रॉब्लम सुबह सुबह खाएं कैसे मम्मी को बोल नहीं सकते कि इतना सारा बना के दो एंड ब्रेकफास्ट शुड बी दी बेस्ट मील। ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए और जो डिनर होता है वो सबसे कम होना चाहिए और अपने उल्टा करते हैं ब्रिलियंट आइडिया गो फॉर इट। अपने इंडिया में रात को सबसे जम के खाते और सुबह कुछ नहीं खाते तो वो गलत चीज है। ये सॉल्यूशन टाइमिंग क्या है रात को सोएंगे लेट सुबह उठेंगे लेट तो निकलने में निकल जाएगा तो होता ही नहीं टाइम खाने का। दूध झटका के बिस्किट दो खा के ऐसे लोग काम चलाते हैं इनफैक्ट बच्चे भी मैं एक दो बच्चों को पढ़ा थोड़ा बोलना चाहूंगा आपके लिए टारगेटेड पीपल कौन सी एज के रहे? एज इज नो बात वैसा कोई एज नहीं रखना पड़ेगा तो ही जाके आप कुछ फोकस कर पाओगे। आप वो really नहीं रख पाओगे बच्चा है क्योंकि बच्चा नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा नहीं बड़ी एज के लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो या तो लाइक एक एज डिसाइड कर लो और फिर वो उसको कैसे आप कवर करोगे उसकी एक स्ट्रेटजी मतलब डाइटिशियन से भी कंसल्ट करना जैसे और हाउसवाइफ देखें तो हाउसवाइफ लोग इतने कंसर्न नहीं होते ये सारी चीजों के लिए ये चीजों के लिए कौन होते वर्किंग लेडीज हाँ तो टारगेट थे हाँ तो उससे एज के हिसाब से अलग-अलग लंच डिनर पैक्स बना सकते हैं सबके लिए अलग-अलग बनाना पड़ेगा जैसे डायबिटिशियन है तो उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा बीपी जो है उसके लिए अलग यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ये सब मेजर प्रॉब्लम उसके लिए आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मेरा मेनू बढ़ जाए बड़ा हो जाए बड़ा हो जाएगा इनिशियल स्टेज में मुझे क्या करना है? आप अगर छोटा मेनू रखूं या पूरा ये ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों में जाना चाहते हैं तो दो को माइनस कीजिए सिर्फ ब्रेकफास्ट या फिर लंच रखिए तीनों में पहले मत कीजिए लंच ब्रेकफास्ट भी हां आई वोट फॉर इट किसी एक मील में सक्सेस मिलता है तो फिर तीनों में जाइए। पहले देखो उसमें क्या होगा आप जितना आप स्पेक्ट्रम बढ़ाओगे उतना ही वैराइटीज मिलेगी और उसको हैंडल करना टफ हो जाएगा तो पहले उसे थोड़ा नैरो करो एक स्कूलिंग या हॉस्टल ये सबको करो स्कूल और उनकी रिक्वायरमेंट में काम करो। स्कूल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कोई बच्चा क्या खाता है कोई क्या नहीं खाता है आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे मतलब एट्रैक्टिव बना के उन लोगों को खिला सकते ऐसा कुछ बनाओ इसके साथ। इसमें एक बंदा है मुझे जो उसका प्रोजेक्ट मैंने देखा था वो कुछ फॉरेन की कोई वेबसाइट बना रहा इसमें आपके कंसेप्ट है बताओ मुझे डिनर करना है डिनर है तो आपको किस हिसाब से करना है मतलब आप जो क्लिक करते जाओगे उस हिसाब से वो भी आपकी डिश बना देगा न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब ऐसा काम किया है मतलब सूरत के नज़दीक में रहता है तो उसको कॉन्टेक्ट करोगे आपको थोड़ा लॉजिक मिल जाएगा तो डाइटिशियन ये सब कॉन्टेक्ट कीजिए लेकिन चलेगा लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम से बस जंप फिल्टर में तो सक्सेस कंफर्म रहेगी। मैंने यही अभी 4 दिन से 5 दिन से वही डिस्कशन चल रहा है तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने 5 डिश रखूँ 5 से 6 उसमें पहले एक डिश ओनली स्प्राउट्स मिक्स स्प्राउट्स मिक्स वेजिटेबल्स देन आफ्टर मिक्स फ्रूट्स ये 3 डिश हो गई देन आफ्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिक्स और वही 5वीं डिश अभी कंक्लूड नहीं कर पाया। अच्छा इसका कॉस्टिंग क्या रहेगा उस पर फोकस कर रहे हैं एक्चुअली नॉर्मली क्या है कि अगर मैं कॉस्टिंग 100 के ऊपर नहीं रखना चाहता उसका रीज़न क्या है कि मैं अभी देखिए इंडिया ऐसा नेशन है कि 12 मास में 12 त्यौहार रहते हैं सभी लोग कुछ ना कुछ किसी का फास्ट रहता है किसी तो फ्रूट्स प्रेफर करते हैं फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स जो भी उनके रीजन के हिसाब से प्रेफरेबल होता है तो उसमें क्या होता है इवन किसी कोई इल है तबीयत खराब है तो वो क्या करेंगे एक ही फ्रूट परचेज कर पाएंगे आज एप्पल लेने जाओगे 4 एप्पल 100 रुपीज़ में और उसके पास चॉइस क्या है एप्पल की ही है 100 रुपीज़ का बजट होगा तो एक एप्पल की एक ही चॉइस है। मैं ऐसा सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि
नियर अबाउट 70-60 रुपीज़ में उनको मिक्स एप्पल और सब चीज़ें आ जाएगी। हाँ, इवन सिर्फ एप्पल ही नहीं, फ्रूट्स नहीं, दूसरे शाक भाजी में बात करें वेजिटेबल्स में, तो उसकी भी जो सब कुछ अवेलेबल हो जाए, तो वैसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो पोस्टिंग अभी नहीं निकाला है, टू बी फ्रैंक विद यू, और प्राइसिंग भी नहीं निकाली, और ये माइंडसेट के साथ चल रहा है। आप जो रेंज बोल रहे हो ना, उसमें सबसे ज़्यादा बहुत ऊंचा रहेगा। मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा था, लेकिन उसमें आपका क्वालिटी बिठाना ना, तो वो थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आप अच्छे से काम करोगे तो चलेगा ही। देखिए, आउट ऑफ कंट्री बात करें तो देयर आर चैनल्स ऑफ स्टोर्स, सिंगापुर, उनका बात ही अलग है। वो लोग का थिंकिंग क्या है कि वो लोग पता है उसमें क्या क्या चीज अंदर पड़ी हुई, ककड़ी में क्या उनको पता है। अपने यहाँ पे किसी को पता नहीं ककड़ी में क्या है, ककड़ी है न्यूट्रिशन। ऐसा डिफरेंस लेकिन उनका और अपना, वो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हमारा इतना नहीं होते। जैसे कि मेरी कॉफी खराब है, पहले ही फ्रेश डाल दे, चाय पियो, चाय पीना है। तो फनी एग्जांपल देना चाहूँ तो अपने यहाँ पे जो सूप होता है, सूप अपने स्टार्टिंग में खाते हैं, लेकिन रियल में सूप को डिनर के बाद खाना चाहिए। और लोग मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उसको एकदम अच्छा वाला न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स वाला सूप दोगे ना पतला, तो वो बोलेगा कि आप पानी पिला रहे हो। अगर आप उसको कॉर्नफ्लोर डाल के सूप पिलाओगे ना, बोलेगा क्या मस्त गाढ़ा सूप दिया। ऐसे होते हैं। सूप का माइंडसेट ऐसा है कि भाई सूप पीने से भूख ज्यादा लगती है, एपिटाइट होता है, मगर मुझे तो आज तक ऐसा माइंडसेट एक्चुअली सूप क्यों पिया जाता है? क्योंकि सूप आप जो खाते हो ना, जो मैदा वो सब आता है, तो वो मतलब जम ना जाए इसके लिए लास्ट में सूप खाया जाता है। अपने यहाँ पे लास्ट में आइसक्रीम खाते हैं जिससे वो ज्यादा बढ़ता है। सेम थिंग आप अगर देखोगे हर एक चीज में हम टोमेटो और ऑनियन भी डालते हैं, दोनों का रीजन है, एक एसिडिक है और एक पाचन में हेल्प करता है टोमेटोस, क्योंकि पानी निकालते हैं तो उससे क्या वो अपना पाचन में हेल्प कर देता है अंदर, तो इसका रीजन वो हम डालते हैं। इसलिए एक काम कर सकते हैं आप एक और भी, इसकी फिटबिट है, गोकी का प्रोडक्ट है, जो लोग हाथ में यूज करते हैं, जो ज़्यादा होते हैं ना हेल्थ कॉन्शियस के, हाँ मेरा आज का इतना वॉकिंग होना चाहिए था, आप उनको कॉन्टेक्ट करो, हो सकते उनका भी कुछ ग्रुप होगा फिटबिट वालों को, वो लोग का कॉम्पिटिशन रहता है कि मैं इतना दौड़ा, कोई बोलेगा मैं इतना स्टेप्स लिया, तो उनका भी ग्रुप होगा, तो कॉन्टेक्ट विद देम। फिटबिट है, गोकी है, लॉट मेनी काइंड ऑफ जो हेल्थ प्रोडक्ट है, हाँ जिमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स हॉस्पिटल्स में उन सबको टारगेट फ्रेश जूस प्रोवाइड करो, जिम में फ्रूट फ्रेश जूस प्रोवाइड करो। उसमें ऐसा है आगे जूस का बेटर है सलाद, अगर वो भी हो जाए तो वो भी हो जाएगा। अपने यहाँ कल्चर नहीं, लेकिन अहमदाबाद में है कि वहाँ पे सलाद उसका पार होता है। हाँ मगर यहाँ में कैसा किया है मोनोपोली, थोड़ी देर लगेगी ना, यहाँ पे कैसा किया मोनोपोली आधे दिन में, यहाँ के तुमको लेना पड़ेगा टाइप खुद का टाइप है। तो अगर वहाँ जाएंगे तो आज पर समथिंग कमीशन, तो कमीशन से इनका भी थोड़ा कस्टिंग कम हो जाएगा शायद, को उसे रेडी उड़ाना पड़ जाए, यहाँ पे थोड़ा वैसा चलता है। So basically everything is concluding down to culture and mindset. So we are not independent. Like so नहीं, अभी आप देखिए जितने भी हमने कंक्लूजन किए, लास्ट में हमारा क्या आ रहा है कि अहमदाबाद में वो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज है, यूएसए में ये चीज है, यहाँ पे ये चीज नहीं है, वहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज नहीं है। सूरत में ट्रेडिशनल बिजनेस है, कॉर्पोरेट बिजनेस नहीं है, सूरत में ये नहीं है, वो नहीं है, तो बेसिकली तो माइंडसेट और कल्चर पे आके सब रुक जा रहा है। तो अगर रुक जा रहा है मतलब ये नॉट इंडिपेंडेंट। हम इतने लेवल पे जितने बैठे हैं उतना सोचे कि हाँ हमें जितनी पर्सनल उतनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली और उस पर सक्सेस हो गई, तो हो सकता है उससे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम यहाँ पे बन जाए। ठीक है, क्योंकि सब वोडाफोन एयरटेल ने एसएमएस तक ही खरीद व्हाट्सएप किसी ने सोचा नहीं, आज में सारा मतलब सब मोबाइल प्रोवाइडर को सर्विस प्रोवाइडर को रुलाने लग रहा है, क्योंकि एसएमएस अब इनका भी बंद हो गया। तो वो थॉट से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें किसी ने बांधा नहीं है, वो रस्सी है ही नहीं कोई, हम खुद सोच रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊं, यस मैं गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए शायद फ्यूचर में अप्लाई करूंगा भी, अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो क्या मैं बिजनेस नहीं करूंगा? किया ना मैंने किया। अगर स्टार्टअप नहीं आएगा, अगर मैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ तो क्या मैं मेरा कंसेप्ट ट्वीट कर दूंगा? सर लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी शायद लास्ट ईयर लॉन्च हुई जब हमने हमारा सेटअप किया था, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद इस साल लॉन्च किया है। अब मुझे ऐसे सिर्फ 10 स्टार्टअप्स के नाम बोल दीजिए जो वो पॉलिसी में से बाहर गए, तो ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है जो आज
अच्छा बिजनेस कर रहा है वो गवर्नमेंट पॉलिसी से गया, तो ऑब्वियस है कि इंडिया में आप यही रूट अपनाओगे कि भाई आपको गवर्नमेंट पॉलिसी के पास आप अपना बिजनेस करना है। इंडिया में टोबैको नहीं है, सबसे ज्यादा बिजनेस उसका है, मार्केटिंग करता है उसका। करता है अजय देवगन। अरे मतलब बहुत अलग चीज है, वो कैसा करता है, वो उसका नहीं करता है। वो एक ही बात उन्होंने क्या किया, पहले कस्टमर पकड़ लिया। स्टार्टअप में मेन क्या है, कुछ चीज शुरू करने पहले कस्टमर पकड़ो, पहले अपना बिल्डिंग में ऑफिस मत लो, पहले कस्टमर लो। तो बिल्डिंग में ऑफिस का खत्म नहीं कर पाओगे आप लोग, पहले ऑफिस से पहले कस्टमर्स लो। भाई जो आपने जो बोला ना कि आपने जो पहले एक नैरो वे में पहले कस्टमर्स बांध दो, स्कूल में, जिम के आसपास, वैसे तो आपको क्या कस्टमर मिला हुआ रहेगा, तो आपको मालूम काम कैसे करना है, कहाँ करना है। तो एक तरह वैसे बंधे हुए नहीं रहोगे। आप बोल रहे कि भाई अहमदाबाद में, सूरत में, यहाँ किसी ने ट्राई किया ही नहीं है, खाली बोला है कि यहाँ है ही नहीं। किया है ना, बहुत सारे किया है। तो उन्होंने पहले मार्केटिंग नहीं किया अपना खुद का। अब मेरा एक कजिन है, बताऊँ बैंगलोर के अंदर, अभी क्या ऑल ओवर वर्ल्ड है ना, सॉरी इंडिया, वो कर रहे हैं प्लास्टिक बैन कर रहे हैं। क्योंकि प्लास्टिक बैग होता है ना, कैरी बैग। मेरे कजिन ने 8 मंथ्स पहले काम शुरू किया है, वो कैरी बैग बनाता है पेपर का और कपड़े का, सॉरी हाँ पेपर कपड़े का। तो उसने क्या किया, जैसे होता है ना कि NGOs और सब अलग अलग उसने जाके बैठता है, वो बोलते हैं कि भैया हमारा एक काम शुरू करना है। उन्होंने पहले ऑफिस नहीं खोला, पहले उन्होंने कस्टमर ढूंढ लिया हमारे कि मेरे पास 10 क्लाइंट्स है आज, तो मैं मेरा शॉप खोल सकता हूँ, तो मेरा शॉप खोलना चलेगा आगे जाके। तो मैंने पहले आप कस्टमर लाओ, फिर आप शॉप खोलें। ऐसे कि आपने एक पॉइंट बोला सर कि पहले अपने वो एक्सपीरियंस लो, अपने वो एनवायरनमेंट का, मतलब काम कैसे होता है, तो अपने बिजनेस खोल सकते हो। मैंने वही चीज़ ही है, पहले काम कैसे होता है वो भी देखो और कहाँ हो रहा है वो भी देखो, तो अपने खोलने का मतलब है, वरना फिर खोलने का मतलब ही नहीं है। और मार्केटिंग का आपको मैं बताता हूँ सर कि अपने बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अपना पॉइंट कहाँ खोलूँ, कैसे खोलूँ। यूट्यूब का नाम सुना, यूट्यूब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं, यूट्यूब क्या होता है यूट्यूब? वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी को फ्रीडम है अपना चीज शेयर करने का। आज एक मैंने एक बंदे का देखा था यूट्यूब के ऊपर वीडियो, उसने अपना सक्सेस स्टोरी बताया। भुवन राम नाम सुना होगा, बीबी की वाइन्स। उसने अपना स्टोरी बताया, बोले कि जो मैं काम अभी करता हूँ ना, अगर मैं वो लीगल वे में करा मुझे कोई अलाउ नहीं करेगा। क्या लीगल लोकल एरिया में? हाँ मतलब कोई से मान लो मैं एक कॉमेडी शो कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होकर, उसमें 10 गालियाँ बोलूँ तो इतना लोग मुझे फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली वाले अलग खुद रहेंगे लेकिन बच्चे के साथ ही रखेंगे अपने, ऐसा ट्रेंड है यहाँ पे। तो वो क्या है कि वो बोलता है कि अपने यूट्यूब के थ्रू अपने आइडियाज को वाइडली शेयर कर सकते हैं। जैसे कि बंदे का पैशन है कि मैं ये करूँ, लेकिन इसका पैशन क्या एक अच्छा है कि मतलब हर एज को पसंद आए, तो वो चीज़ ऐसे वाइड स्प्रेड हो सकता है। लेकिन अब किसी का होता है कि भाई नहीं चल रहा, अब तंबाकू है, छुप छुप के सबको खाएगा, सामने कोई नहीं खाएगा, मतलब किसी का मैं तंबाकू यहाँ कोई नहीं खाएगा, बाहर देके खा लेगा। तो मैंने वो वैसा काम भी होता है, लेकिन धंधा चल रहा है ना उसका भी। ऐसे नहीं हम खाने की नॉन गवर्नमेंट आप नहीं खाने दोगे, वही तो हो गया ना इंडिपेंडेंस। आपके सामने नहीं खाएगा, बाहर तो खाएगा ही ना, वही तो इंडिपेंडेंस हो गया। वही तो गलत चीज के लिए नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ। अच्छा गलत चीज हो गया, तो अपने क्या आके हंसाना ही है, उसका मेन पर्पस है कम्युनिटी हंसाने का। तो वो गाली बोल के हंसा है क्या नॉर्मल जोक बोल के ऐसा हंसा तो रहा है ना। तो मैंने यूट्यूब के थ्रू अपने आप आइडिया स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हो। एक मेरा एक पॉइंट है, मेरा सोच सनफ का चैनल है यार, वो उस पर मैं लास्ट 10 मिनट से जुड़ा हुआ, कोई देखता नहीं, क्या क्या अरे मुझे पता ही है मार्केटिंग की पर्सनल में सबको लिंक भेजो, वैसा ही करता हूँ, पर्सनल में लिंक भेजो सबको। और आज भी वही करके आया, अभी जो घर से आया तो वही काम करके आया। मैं आपको मैं बात बताता हूँ कि YouTube पे लिखते तो कोई रिप्लाई नहीं देता। एक ऐसा फिर उसमें इज्जत का क्या मेरी? सर मेरी इज्जत तो बचा होगी। सर अभी नहीं होगा तो सर अभी, लेकिन सर आपने कितने लोगों को 10 महीने में कितने लोगों के साथ ऐसा डिस्कशन किया? ऐसा मैं लास्ट 10 मिनट से बहुत सारे डिस्कशंस किए। हाउ मेनी पीपल? 1000 लोग होंगे। वही तो आपका सक्सेस। अरे यार पर ये तो YouTube की बात, मुझे 10 आपकी सूरत स्टार्टअप की बात करें, अगर हजारों लोगों के सामने आपकी प्रेजेंस हो चुकी है तो उसमें मुझे 5 लाइक्स मिले। फिर मैंने अपने 5 दोस्तों के अकाउंट्स में से लॉगिन करके और 1000 लोगों को इनवाइट किया, मुझे उसमें से 10 लाइक्स मिले। तो क्या मतलब? हाँ मेरे पेज में भी 10 ऐड मिले, और मतलब हमने कम से कम 10,000 इन्वेस्ट किया होगा, तो 100 ही अभी तक। सर मेरी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करती है और मेरे सूरज स्टार्टअप्स के YouTube चैनल पे बिल्कुल व्यूज नहीं आते। अभी आप बताइए। अवेयरनेस नहीं है, बताओ। अवेयरनेस नहीं है। सूरज स्टार्टअप के मेरे पास 2-3 मैसेज आए, प्लस जो सर है ना हमारे ये मेहुल सर, उनका मैं देखती रहती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। अदरवाइज मैं ये फर्स्ट टाइम इसलिए कि टाइम निकाल के आई थोड़ा। કેટલા કાબેલ હતા એક કસ્ટમર, એમણે મને કીધું કે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં એક હતા, નામ એનું નહીં લીધું, કાર્ડ લઈને ગયા કે એમાં આવું છું,
सर मैंने क्या किया था सर प्लीज मत बोलो आदत पड़ गई सर। तो मैंने क्या किया था, एक फेसबुक पेज है इंस्पायरिंग यंग माइंड्स, उसका जो एडमिन है ना उसको अच्छी पोस्ट चाहिए थी और मेरे पास अच्छी पोस्ट थी, मुझे व्यूज चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसको पर्सनल मैसेज किया कि मैं तुझे अच्छी पोस्ट दे सकता हूँ ताकि तू उसे अपने पेज की पोस्ट करके उसको भी ज़्यादा लाइक्स मिल सके अपने पेज के लिए। तो हमने एक डील कर दिया कि मैं क्या करूँगा, महीने में उसको 2 मोटिवेशनल वीडियोस दूंगा और एक टेक्निकल वीडियो दूंगा। तो उससे क्या हो गया, मेरे तो व्यूज बढ़ेंगे, साथ में उसके पेज के भी व्यू बढ़े। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्रॉस मार्केटिंग। हाँ एग्जैक्टली, कोलैबोरेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और जितना हो सके उतने कॉन्टेंट्स बढ़ाओ, तो वो बहुत काम आएगा। नहीं, मैंने ये फन में पूछा था, कोलैबोरेशन सब मुझे पता है। सी द प्लेटफॉर्म वाला पॉइंट, उसमें मुझे सिर्फ ये बोलना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म। जो हमारा जो डिस्कशन है वो नैरो डाउन इससे भी होगा कि प्लेटफॉर्म पे। तो अगर मेरा एक आइडिया है, इफ आई वांट टू शेयर माय आइडिया, इवन इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया, इट वुड बी इजियर इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दैट इन अहमदाबाद। ठीक है, सूरत में क्यों डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लोग अडैप्ट नहीं कर पाते आइदर वो आइडिया को। ठीक है, और फिर आइदर वो कल्चर, माइंडसेट और वो सबका ट्रेडिशनल बिजनेस का वो सबका नैरो माइंड पड़ा। अभी अहमदाबाद में क्या होता है, अहमदाबाद में इफ यू सी देयर आर डेमो डेज मतलब एक सेमिनार हॉल में 10,000, 1,000, 5,000 लोग बैठे हैं, वहाँ पे स्टार्टअप्स प्रेजेंट करते हैं और जिनको आइडिया पसंद आता है उनको फंड करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, सो आप एक ही दिन में देखोगे 20 स्टार्टअप होते हैं, उसमें से 5 स्टार्टअप्स का आइडिया एक ही जैसा होता है, पर वो 5 एग्जीक्यूट करते हैं और वो 5 बिजनेस में सस्टेन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म वैसा है। ठीक है, अब मैं ये हर जगह पे मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को अगर एक स्टेटस मारना है, मैं कहाँ पे मारूंगा, फेसबुक पे या ट्विटर पे? ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म वैसा है। तो सेम एग्जांपल वही कि सूरत में मेरे पास आइडिया है, सूरत में मेरे पास सब कुछ है, पर प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मेरा वो आइडिया उस तरह से कभी जाने वाला है। एग्जैक्टली, वही क्वेश्चन है। सो इट इज according to us, it is about the people. So once we get the collaborations done, when we get people on board, and once we let people know that this is something which is happening very good, so you can come and join. आप वो, क्योंकि सी अभी हम यहाँ पे 15 लोग बैठे हैं, हम 15 लोगों को समझ में आया कि इन्होंने जो आइडिया बोला वो भले ही कैसा भी हो, 10 लोगों ने एग्जीक्यूट किया, पर हमको उसकी वो डेप्थ समझ में आ रही है। सो एटलीस्ट हम उसको एक बार तो यूज करेंगे शायद, और वैसे अगर ऐसे 10,000 लोग भी होंगे तो धीरे धीरे शायद वो सिटी में चेंज आए, and then we can feel independent sharing our ideas. Anybody else? वो सलमान खान की मूवी है ना, थैंक यू सुल्तान। हाँ थैंक यू, हम वैसा हाँ वैसा कर सकते हैं। वैसे यूथ का जितना कनेक्शन कर सकते हैं ना, तो ज़्यादा नेटवर्क बढ़ाना चाहिए और यूथ को यूज करना चाहिए सबसे ज़्यादा। आज मैं अपना एग्जांपल बात करूँ, मेरा भाई वेनसडे में MCA लास्ट ईयर प्लेसमेंट चालू हो गए। मैंने उसको कहा कि तू यहाँ पे आ, कम्युनिकेटिव ऐसे हो रहा है। तो उस दिन वो उनका उसने मुझे ये कहा कि भैया आप इवेंट्स में जाइए, जो भी है आप मुझे बताएगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अभी जा रहा हूँ। तो दूसरा ये भी है अपने यूथ में कि मैच्योरिटी लेवल के एक कैरियर ओरिएंटेशन इतना नहीं हो रहा है कि भले मैं अपने भाई का एग्जांपल है, वो है ओरिएंटेड क्योंकि उसको प्लेसमेंट मिला है, उसका एक हो गया ऐसे, पर दूसरा क्या होता है कि एक चीज मिलने से दूसरी चीज पे हम फोकस नहीं करें, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। कि नॉलेज आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आपके पास नॉलेज होगा तो आप भले एक फील्ड में, मैं आज NBFC में हूँ, फाइनेंस फील्ड से, पर मैं दूसरे फील्ड में नॉलेज लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा अपग्रेडेशन होगा। नॉलेज है, इंडिपेंडेंस नहीं है। नहीं, नॉलेज लेना इंडिपेंडेंसी नहीं है, पर मेरा अभी डायरेक्शन, अभी हम इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वो कंक्लूजन आ ही रहा है एट लास्ट। तो हम कैसे डायरेक्शन में सूरत स्टार्टअप या हम अपनी कम्युनिकेटिव को ले जा सकते हैं, तो उस पर हम वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट जो हमारे यंगस्टर्स है उन लोगों के अंदर वो मोटिवेशन नहीं है। अगर कोई ऐसा है जो उन सबको मोटिवेट करे तो इंडिपेंडेंस इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ये समझती हूँ, अगर आपको कुछ करना ही है और आप सही हो तो पेरेंट्स आपको कोई रिस्ट्रिक्शन करने नहीं वाले। सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि जो यंगस्टर्स है उनको मोटिवेट करो। उनको मोटिवेशन एक डायरेक्शन में करो कि भाई क्या करना है भाई। जैसे हम लोग अलग अलग फील्ड से, मैं अगर सीए की फील्ड से, तो मैं अपने फील्ड के अंदर जो भी बंदे हैं, मेरे जूनियर्स हैं या जो भी है, मैं उन लोगों के साथ कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी करूँ, ये अपने उनके साथ करें। अगर कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा तो जाके 2 साल 3 साल के अंदर
ये चीज बाहर आ सकती है। हम बड़ी कम्युनिटी के साथ लोगों को एक जो सारी अलग freedom अलग दे फील्ड सकते है, अलग अलग फील्ड में हमें एक एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बनाना चाहिए। हमें खुद को रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा पहले। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग सब लोग एक एक कॉलेजेस स्कूल्स पकड़ के हम लोग उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार्टअप क्या होता है उसके बारे में हम लोग सेशंस ले सकते हैं, तो उनको मतलब एक स्पार्क जनरेट होगा। एंड अगर इसी पे फोकस रहा ना हमारा, तो विद इन नेक्स्ट 5 to 7 years में ये जो नहीं सही सर बुढ़े हो जाएंगे हम लोग। 5 to 7 5 to 7 बुढ़े हो जाएंगे हम लोग। आगे बच्चे कहाँ आएगा ना भाई? इंडिया में लोग किसी के बात नहीं रहेगा। फिर मेरी क्रिएटिविटी भी कम हो जाएगी। चलो आज इंडिपेंडेंस डे पे हम ऐसा तो टारगेट ले सकते हैं, कमिंग इंडिपेंडेंस डे पे हम वापस इतने में से हाँ जो भी अपना वापस इंडिपेंडेंस डे आएगा तो ये सेशंस पे ही सेम उस दिन डिस्कस करेंगे, पर ये कम्युनिटी बढ़े ऐसे कोशिश करें और कितना चेंज है वो भी डिस्कस। यस अभी 15 में तो 150 होने चाहिए था। मीनवाइल हम 100 टाइम मिलेंगे, कमिंग 15 तक हम 100 टाइम्स मिलेंगे, पर उस दिन अपनी कम्युनिटी कितनी बड़ी हो हमें फिर शायद इनको और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपको कहाँ से ऐसा आइडिया मिला कि ऐसा कुछ करना चाहिए? कौन सा? मुझको ही आइडिया, ऐसे मुझे कोई आइडिया पर मेरे को सिर्फ You are the only मतलब आपने ही स्टार्ट किया या कोई और भी है ये टीम? मतलब we already have a team of 10 to 12 people, okay, so it was a combined idea, not my own idea, so उसमें निपुण भी है, so this was a combined idea कि इंडिपेंडेंस डे पे हम ऑलरेडी एक स्टार्टअप कम्युनिटी है, so हम उसको रिलेट कैसे करें इंडिपेंडेंस को और स्टार्टअप को, so हमने talking about स्टार्टअप, सूरत स्टार्टअप जो हाँ मैंने स्टार्टिंग में ही शायद ये चीज़ बोली कि जब हम लोग हमारा खुद का एक स्टार्टअप है जिसको 1 साल ही हुआ है, इट इज़ कॉल्ड एपसेक्स, ठीक है। तो जब हमने स्टार्ट किया ना तो हम लोग काफ़ी लोगों से मिलने गए, हमने SGGCI गवर्नमेंट बॉडीज, हमने पॉलिसी स्टडी की, हमने सब जगह पे सब मतलब ऑलमोस्ट जो हमारा बेंचमार्क था हमने क्रिएट कर लिया, पर हम जितनी जगह भी गए ना हमको लास्ट में कंक्लूजन यही मिला कि हमने वहाँ जाकर अपना टाइम वेस्ट किया। उससे बेटर अगर मैं अपना बिजनेस एग्जीक्यूट करने में टाइम लगाया होता या फिर अपना विजन पे ध्यान दिया होता तो शायद मेरा ग्रोथ अच्छा हुआ होता, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी है आप जाओ अहमदाबाद जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई नोडल इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे कोई आपको फंड नहीं करेगा, आप अहमदाबाद जाओ, अहमदाबाद बोलेंगे आपको 3 महीने लगेंगे, मिनिमम आप 3 महीने में उनके प्रोसेस में वेस्ट करो, उससे बेटर मैं अपना काम करूँ। सेम सूरत में आपने बोला ट्रेडिशनल बिजनेस है, यहाँ पे कोई आपको मेंटर नहीं मिलेगा आपके फील्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी होता क्या कि मेरे को अगर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में करना है तो मेरे को अगर ऐसा मेंटर मिल जाए जो ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपर्टाइज है तो वो मार्केट रिसर्च मुझे करने की पड़ेगी, वो वहाँ पे मैं अपना इनिशिएट कर सकता हूँ। सो वो प्रॉब्लम फेस हुई हमको। So now we are at a stage, if you are a startup, if you have an idea, okay, so we can guarantee you to let your idea execute in the next 3 months. So we have mentors, we have investors, we have people who can guide you through your startup in whatever field you are. Mechanical छोड़ो। सर एक और इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, हम लोग गए थे स्कूल में, स्कूल का नाम नहीं अभी आप सर बोलोगे तो आपको कॉपी बुलानी पड़ेगी। हाँ, तो एक स्कूल में गए थे हम लोग परमिशन लेने की, हमें इधर सेमिनार कंडक्ट करना है, तो हमने सोचा था 2 दिन का वर्कशॉप करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, इसलिए मैंने कहा प्रिंसिपल से कि हर स्टूडेंट से मैं 10 रुपीज़ लूँगा वर्कशॉप के लिए, तो टेक्निकल वर्कशॉप करूँगा उसके 10 रुपीज़ लूँगा, लेकिन मोटिवेशन फ्री में करूँगा। 2 दिन के बाद वो प्रिंसिपल का कॉल आया, वो बोलते हैं कि आप आ जाना, लेकिन वो फ्री वाला है ना वो करना, वो 10 रुपीज़ वाला हमको नहीं करना। बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन में गया जब स्कूल गया तो पहला सेशन उनको स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमको रॉकेट बनाना सीखना है, हमको रोबोटिक्स सीखना है। था तो मैंने कहा कि मैं तो आपके स्कूल में आने वाला था, लेकिन आपके स्कूल के प्रिंसिपल है नाम बोला। उसके बाद भी स्टूडेंट्स ने उनको बोला प्रिंसिपल को कि हमें इंटरेस्ट हमें सीखना है, हम लोग पे करने को रेडी है, 10 रुपीज़ पर स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल ने ना बोल दिया, बोलते कि हम हमारे स्कूल से पैसे बाहर नहीं जाते। और वो बोल रहे थे हाँ, वो प्रिंसिपल जो गुजराती मीडियम के थे, जो सर बहुत अच्छे थे, लेकिन जो दूसरे वो एक मैम थे वो इतने रूट थे, उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ उनको काम नहीं आने वाली, तो सिखा के हम क्या करें। सिर्फ उनको ही पता है वो क्या काम आने वाला है। बहुत एग्रीएबल पॉइंट है। हाँ, सो किसी और को अपना पॉइंट रखना। आई थिंक वी कैन कंक्लूड इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। ये बोल रहे थे यार, ऐसा बोल रहे थे जैसे कि हम सब कॉलेज में जाएंगे और स्टार्टअप के बारे में अवेयरनेस लेंगे, लेकिन अवेयरनेस आ नहीं रही है क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही ऐसा, लोगों का माइंडसेट इतना नैरो माइंडेड है ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 108 ये जो एम्बुलेंस जो है
जितनी एड्स आ रही है टीवी पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, जो भी एक्सीडेंट होता है लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई एम्बुलेंस को बुलाओ, लोग मोबाइल लेके फोटो खींचते हैं एक्सीडेंट से। हाँ, ऐसा माइंडसेट है। जब तक ये माइंडसेट हमारा चेंज नहीं होने वाला तब तक ये स्टार्टअप के वो भी बहुत कम लोगों के दिमाग में। पर एटलीस्ट हम एक ट्राई करेंगे तो मिलेगा ना, सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो हमको सक्सेस मिल गया पोलियो में, 125 करोड़ लोगों को पोलियो हम खिला चुके हैं, तो पाकिस्तान जैसे देश 18 करोड़ को नहीं खिला हुआ है। पाकिस्तान सक्सेस मिलेगा लेकिन मेहनत बहुत हमारे लोग माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे। उन लोग को कुछ पता नहीं है और वो लोग खुद से सोच नहीं रहे, लेकिन हम उसमें एक स्पार्क लगा के उन लोग को बता सकते हैं कि आप, हम लोगों ने आपको इतना बताया, अब आपके पास कुछ आइडिया है, आप इंटरनेट यूज करो। मैंने ये देखा कि यहाँ पे लोग इंटरनेट सिर्फ फेसबुक पर यूज करते हैं। इंटरनेट सिर्फ फेसबुक के लिए नहीं है, यूट्यूब के लिए भी करते हैं। एक बात बताऊं, मैं फेसबुक से जितना सीखा ना उतना कहीं से नहीं सीखा। नहीं, फेसबुक पे सीखने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कौन सीखता है, कैसे यूज कर रहे हो उसको, कुछ होता नहीं है पर 5 घंटे लोग क्या करते हैं, मतलब फेसबुक पे वो रजनीकांत का पेज लाइक करके वो देखते हैं, लेकिन कोई टेक के वीडियोस कोई नहीं देखेगा वहाँ पे। फिर वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी की मैगजीन है वो कोई नहीं देखेगा। ये फालतू के जोक सब लोग शेयर कर रहे हैं, सब लोग लाइक कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो चीजें इंटरनेट इतना बड़ा है और उसमें से सब कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन नहीं सीख रहे हैं। वही माइंडसेट आलसी बना रखना। हाँ, पान के गले में जाके पानी बीड़ी पीना, थूकना। ये एसएमसी वाला फ्री वाईफाई दे रहे हैं, लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि सूरत स्टार्टअप को प्रमोट करना है। आज कोई भी चीज़ है तो माउथ टू माउथ मार्केटिंग तभी होता है कि वहाँ पे कुछ अच्छा हो। पहली बात ये सही बात है। तो एज हम कम्युनिटी ऐसा सेट कर सकते हैं ना कि यहाँ पे कोई सक्सेस स्टोरी बने, अगर है तो आनंद शेयर करेगा कि वही सक्सेस स्टोरी को हम वापस प्रमोट करें। देखो एक चीज़ हो सकती है कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लगी है तो वहाँ पे दूसरा वो टेस्ट करने तो आएगा एक बार, या दूसरे को बताएगा, तो हम प्रमोट भी करें और एज ए रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अपना अभी डिस्कशन हुआ था, एक रिप्रेजेंटेटिव भी बने। तो अभी कोई सक्सेस स्टोरी है ऑब्वियसली तो वो सक्सेस स्टोरीज को कर सकते हैं, जैसे कि टेड टॉक्स होते हैं, जैसे सूरत में भी होता है IWS, आइडिया वर्ड स्प्रेडिंग टॉक्स। तो हम लोग भी हर संडे एक टॉक रख सकते हैं यार, कोई ऑडिटोरियम हो रहा है यहाँ पे। मैं भी टेड स्पीकर हूँ। तो जब IWS में से भी इन्वाइट किया था तो उन लोग के लिए हर संडे टॉक होता है, तो हम लोग भी कर सकते हैं कि हम लोग यूथ को बुला सकते हैं। तो 15 मिनट का उनका कोई भी स्टोरी वो लोग बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीकर्स बहुत मिल जाएंगे सूरत से, उसका प्रॉब्लम नहीं। पर हमें जगह का प्रॉब्लम है कि कहाँ पे हम उसको अरेंज कर सकते हैं। जगह का प्रॉब्लम इज ऑन मी, डोंट थिंक अबाउट। हम लोग लास्ट 2 महीने से गार्डन में हर संडे मीट रखते हैं और हम लोग वहाँ पे करते हैं। हर 2 महीने हर संडे में। See, Angilu Cafe is open for me. Supporting Make in India. So एक तो स्पेस बुक हो गई, ठीक है। दूसरी स्पेस यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट मी। तो स्पेस आप गार्डन में मत करो यार, गार्डन थोड़ा जिसको यूज आता है उसको यूज करने दो। सुबह 8 बजे किसी को यूज नहीं आता। सुबह 8 बजे करते हैं। हाँ, हर संडे हमारा सेशन होता है। ओके, स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल से, प्रोफेसर्स आते हैं। एक और पॉइंट है, जब आपने सब्सिडी की बात की, सब्सिडीज नहीं मिलती है, उसका मेन रीज़न ये है कि जो भी स्टार्टअप वाले हैं वो आइडिया तो लेके जाते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी लेके नहीं जाते। एग्जीक्यूशन स्किल्स नहीं होती। बस जैसे कि मान लो आपको ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो प्रोडक्ट कहाँ से प्रोक्योर करना है और उसको डिलीवर सस्ते से सस्ता कुरियर चार्जेस के साथ उसको एंड यूज़र तक पहुँचाना है। पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक की प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस हम समझा नहीं सकते। बाकी स्टार्टअप के लिए करोड़ों रुपये देने वाले बैठे। तो मतलब सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी भी और प्राइवेट भी बहुत सारे है। तो प्राइवेट से तो मिल रहा है सर। प्राइवेट वाले तो खोल के बैठे, आ जाओ मेरे पास में, कोई इशू नहीं है। मैं आपको प्राइवेट के नाम देता हूँ। देयर इज अ इंक्यूबेशन सेंटर कॉल्ड वेंचर स्टूडियो इन अहमदाबाद। वहाँ पे वो एक भी स्टार्टअप को ना नहीं बोलते। वो किस तरीके से डील करते हैं कि आप अपना स्टार्टअप आइडिया लाइए, सिर्फ आइडिया। मैं आपको वो एग्जीक्यूशन और फिर वो रेवेन्यू मॉडल और बिजनेस मॉडल की तो बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ आइडिया लाइए। वो आइडिया के बेसिस पे दे ट्रेन यू फॉर 3 months एंड दैट टू फॉर फ्री। ठीक है, वो 3 months में आपको आपका बिजनेस मॉडल तैयार करने में हेल्प करते हैं, एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं। 3 महीने बाद पूछते हैं कि डू यू फील यू आर रेडी, एंड वंस दे से कि वी आर रेडी, देन दे गो फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड देन दे गो टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप। सो अभी
उसके अंदर वो पार्टनरशिप तो भी उसका तो बनता है प्राइवेट बॉडी है पर एटलीस्ट ग्रो हो गए तभी आपको एग्जैक्टली एटलीस्ट आपको समझ में तो आया कि बिजनेस मॉडल क्या है, एटलीस्ट आपको समझ में आया आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, आपको किसी ने हेल्प की। गवर्नमेंट तो कभी ये नहीं करना, आप फॉर्म लेके जाओगे वो रिजेक्ट करेगा, आप फॉर्म लेके जाओगे रिजेक्ट करेगा, आप उसमें तो हम लोग हमारे यहाँ ऐसा कोई एस्टैब्लिश किसी को नहीं, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि स्कैट से हमारी बात चल रही है, स्कैट में वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ इंक्यूबेटर सेंटर। सो शायद नेक्स्ट वीक तक वी वुड बी गेटिंग अ स्पेस, बहुत बड़ी स्पेस है उनकी, सो वो स्पेस वी कैन यूज एनी टाइम, ठीक है। और वो स्पेस स्पेसिफिकली इसीलिए होगा कि वहाँ पे स्टार्टअप्स कभी भी आके दे कैन गेट मेंटर, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू रिलेटेड टू स्टार्टअप। सो आपको पता होगा इंक्यूबेटर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वहाँ पे आपको मेंटर्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको ऐसा सपोर्ट मिलता है जो स्टार्टअप्स के लिए ईजी होता है। सो हम लोग वो सेटअप करने की ट्राई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वो सेटअप हो चुका है। सो नेक्स्ट वीक वी कैन ऑब्वियसली अनाउंस स्कैट एज वन ऑफ द इंक्यूबेटर सेंटर ऑफ सूरत। सो ऐसा भगवान महावीर में क्यों नहीं? भगवान महावीर में ऑडिटोरियम नहीं है। अनिल जैन बैठा है सर, नहीं है। सो सी आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। हमारे जो ट्रस्टी है अमित जैन सर करके, वो स्टार्टअप्स में बहुत इंटरेस्टेड है पहले से। श्योरली हमको तो कोई सुनिए, आप बोलो तो हम बात करें। आप निपुण को पूछिए, हम लोग हमारे पास एक आपको पता होगा IFP करके, पता है आपको? इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट करके है, ठीक है। सो दैट इज द एशियाज लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच हैपन एवरी ईयर, ओके। सो उसका सिटी कोऑर्डिनेटर इज सूरत स्टार्टअप। सो हमको सिटी में प्रमोट करना है उसको, वो इवेंट को। सो उन्होंने हमको यही बोला था कि आपको कॉलेजेस में जाना है। सो व्हाट वी थॉट कि हमको कॉलेजेस में ऑलरेडी एंट्री मारनी है, तो वी विल टेक बोथ द थिंग्स टुगेदर, ठीक है। सो आपको पता होगा निपुण से हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, पर उसमें इशू ये आ रहा है ना कि वहाँ पे ऑडिटोरियम नहीं है, जो निपुण ने ऐसा बोला। हाँ, मतलब इंजीनियरिंग में नहीं है, लेकिन वो सेमिनार कैपेसिटी 200 जन बैठ सकते हैं आराम से, और वहाँ पे इवेंट्स होते ही है। और हमारे जो सर उनसे मैं बात करूँगा, अभी बात करूँगा, तो कल भी हॉल देने को रेडी हो। अरे तो फिर तो परफेक्ट, तो कल ही कर लो, पक्का। तो एक बार में सब लोग आए ना, ऐसा ही सर को बोला आर्किटेक्चर वाला है ना, उसमें करो। अभी 2 दिन आने वाले थे स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन उनका प्लान कैंसिल हो गया था। बोले थे कि एंड वी आर ऑब्वियसली लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इन द सेंस कि एक बार हम इवेंट करेंगे तो गारंटी है कि हम वो इवेंट्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंटिन्यूअस बेसिस पे होते रहेंगे। और प्लस वो अगर कॉलेज इंटरेस्टेड है तो वो कॉलेज को वी कैन गिव अ इंक्यूबेशन टाइप का थिंग कि अगर वहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स अगर उसी कॉलेज से होते हैं, ठीक है, सो आप स्पेस दो सिर्फ, वहाँ पे आके मेंटर और हेल्प हम करें। तो ऐसा कुछ भी बात हो सके पॉसिबल हो तो आप खुद वहाँ पे बात करना, मैं भी आऊँगा आपके साथ, ठीक है। तो आप पूरा डिस्कशन कर लें कि आप बिल्कुल जैसा चाहिए वहाँ पे वैसे कैसा चाहिए, वो तो मना नहीं करेंगे मुझे, जहाँ तक मना नहीं करेंगे। आई एम आल्सो भगवान महावीर स्टूडेंट, बट मैं ऐसे इतना ट्रस्ट नहीं करता भगवान। नहीं क्राउड इतना वो नहीं है, स्टूडेंट्स का इतने इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ। जैसे स्केट में क्या प्रॉपर है, ऐसा है कि वहाँ जाके अपने बैठे जाके, वहाँ पे तो कुछ नहीं है, जाना ही क्यों अपने वहाँ बैठे कैंटीन बैठ। हमारे कॉलेज में इवेंट्स होती है तो हमें धक्का सबको धमकी देके बुलाना पड़ता है कि ये हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, आप आओ, नहीं तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। वो चीज अटेंडेंस का सबको डर है। आप खाली अटेंडेंस का बोल तो सब लोग आ जाएंगे, बस धमकी देनी पड़ती है। पूरा महीना में आया वो भी आ जाएगा। दादागिरी वाला कोई स्टार्टअप करा हो ताकि सब आ जाए। सो फाइनली एक सब लोग अपना पॉइंट बोल दो कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द डे, अपना पॉइंट सर कि डू यू फील इंडिपेंडेंट इन द कम्युनिटी? मेरा नॉट एट ऑल। थैंक यू। मेरे अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस होने के लिए पहले खुद से इंडिपेंडेंट तो खुद ही एक मैं खुद में कैसे करूँ यार, पापा को कैसे बोलूँ, मम्मी को कैसे बोलूँ, अपना आइडिया बाहर कैसे लाऊँ, तुम लाओ तो सही उसको बाहर, भले कैसे भी लाओ, खुद इंडिपेंडेंस ले लो। आइडिया लाया, पापा से नो फॉर काइंड ऑफ थिंग, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। मतलब आप खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद से ओपन किया तो करना आप भाई, पहले खुद को फैमिली सपोर्ट नहीं है, भी कर रहा हूं, खुद तो खोलो अपने आप को बस। Just yesterday evening, what I see, what is freedom? तो freedom को हम ऐसा बोल सकते हैं, it is our lifestyle and everyone should own it. तो जाके ये कुछ आएगा आगे जाके, हेल्प करेगा। कोई नहीं कर रहा तो मैम आपने बहुत स्ट्रांगली नो बोला कि Because see, I like to be out. मुझे रात को बाहर होना पसंद है कि मैं तो that is not allowed. घर पे जाके हमेशा झगड़ा होता है, लेकिन मैं जाती हूँ, still I go. So you have that courage ना to challenge. But मैं ये सोचती हूँ कि अगर अलाउड नहीं है तो आप भी अपना थोड़ा माइंडसेट कर ही लो ना कि that is not freedom. ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ कि
कि अगर वो चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसको इग्नोर कर दो। आपको बाहर जाने तो ऐसे टाइम पे जाओ फिर कुछ प्रॉब्लम ही ना हो। समटाइम्स हो जाता है अल्टरनेटिव फाइंड कर लो। आप एक मम्मी की बात कर रहे हो। ह्यूमन टेंडेंसी का जिसको पता क्या वो पहले ही है। कंप्लीटली एग्री। प्रोफेशनल इवन एज अ बॉय मेरे घर पे होता है। देखो किसी भी फील्ड में किसी भी एस्पेक्ट्स में उनको फ्रीडम नहीं है। जैसे इन्होंने बोला कि घर से बाहर निकलना तो घर वाले मना करते हैं, लेकिन फिर भी जाती है। रात को देर रात भी जाती है। देर रात को जाने का उनको फ्रीडम तो है, लेकिन रिस्क भी है। ठीक है, कैसा रिस्क भी है ना। सेफ सिटी, लेकिन कुछ मैं भी 11-12 बजे आती हूँ अकेले। आते हैं बरोबर है आपकी बात, लेकिन सूरत में क्राइम रेट 0 है। क्या आपको मालूम है क्राइम रेट 0 है? लेकिन रात के टाइम पे आप ऐसे एरिया में क्यों जाते हो कि जहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है? आपको पता चलता है कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। सेफ नहीं है, घर भी सेफ नहीं है। आप क्राइम रेट देखो, घर के अंदर क्राइम हो रहे हैं। गोविंद जोड़ा क्या है ना, उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ये सतयुग कब था मुझे पता नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ सतयुग आज है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी वाइफ सेफ है। सतयुग में तो उसको भी वो लोग ले जाते थे। रामायण में रावण ने क्या किया, आप सतयुग में जी रहे हो। काम करो, टेंशन मत लो। क्राइम नहीं है अभी पहले जितना। आप फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, काम कर सकते हो। लूट अभी इतनी नहीं होती है, रात को घूम सकते हो। लूट होती है पर इमोशनली होती है, फिजिकली कम हो गई है। फिजिकली लूट अभी होता है, उठाना हो गया, वैसी लूट होती है। हाँ, वो कहते हैं ना अल्टीमेटली एनर्जी तो कांस्टेंट ही है, इट हैज चेंज्ड वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। तो ये है, बट अकॉर्डिंग टू मी फ्रीडम इज इन स्पेस एंड टाइम एट एनी पॉइंट डिसीजन और लाइफ शुड बी माय चॉइस। एनी डिसीजन और लाइफ माय लाइफ माय। अगर आपकी चॉइस जो भी है मैम, वो सही है या गलत है, सही गलत जैसा कुछ होता ही नहीं है। सर उसके लिए सेंसर बोर्ड रखोगे आप? सही गलत, लेकिन सेंसर बोर्ड की बात नहीं है, एक लिमिटेशन कुछ जगह पे तो होना ही चाहिए सर। मैच्योरिटी आनी चाहिए हमारे दिमाग में, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। वो मेरे अंदर से आना चाहिए, it should come from within. Nobody should tell me कि you should not smoke. It should come from within. But then that is freedom. But अब ऐसा भी आ जाएगा इंडिया में। नहीं, बोलिए मैम। जब तक आप इमेच्योर हो, बट अभी से आपको रोकने वाले Who is the person to tell me that I am mature or not? Yeah. Who will judge that I am mature or आज not? हम 2 साल के 3 साल के बच्चे अगर ऐसा मैम 2 साल 3 साल के बच्चे So that is something different. वही तो मैं बोल रही हूँ, मैच्योरिटी एक लेवल होता है, वो लेवल क्रॉस करने तो के क्या मैच्योरिटी क्या? मुझे अगर अभी डोरेमोन पसंद है तो इज दैट मैच्योर और इमेच्योर? ना, See, don't take it. इसका कनेक्शन फ्रीडम के साथ नहीं है ना, दैट इज मैच्योरिटी। जैसे ये अभी बोल रहे थे, जैसे ये अभी बोल रहे थे कि रिस्क है, ये है, वो है, तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा कि मुझे ये टाइम के बाद यहाँ पे नहीं जाना है। मुझे रिस्क नहीं लगा, मैं ऑब्वियसली मुझे कभी रिस्क नहीं है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं ना, मैं वो बोल रही हूँ कि अगर मुझे कभी कोई फ्रेंड को पिकअप करना है एट 1 o'clock आके पॉइंट यू कैन गो। बट वही एक्चुअली मैम का ये कहना है कि आप कितने स्पेसिफिक टुवर्ड्स अपने लाइफ स्टेजेस होते हैं, तो उसके प्रति कितने नहीं, वो शादी के बाद नहीं करेगा। तब That is maturity. That is taking responsibility. नहीं, मैं लाइफ स्टेजेस यानी कि आप एजुकेशन खत्म हुआ तो आप अपना अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू आता है, वो एक स्टेज है कि अर्निंग करनी है, तो उसके प्रति आप कितना फोकस है, तो वो एक मैच्योरिटी लेवल शो करता है। अच्छा, मतलब अर्निंग चल रहा है कि आप देखो आप अभी स्टूडेंट लाइफ है, तो अभी सब कुछ कर सकते हैं, पर आफ्टर क्या आप पूरी लाइफ स्टडी ही करोगे, तो वो डिसीजन लोगे, तो वो एक मैच्योरिटी लेवल है कि आपने एक डिसीजन लिया, वो एक मैच्योरिटी लेवल। वो बाकी दूसरा तो मैं ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल पे इतना नहीं कह पाऊंगा, पर इतना कहूँगा कि मैं आज इंडिपेंडेंट फील करता हूँ और आइडिया शेयर करने में भी इंडिपेंडेंट अब हो गया। और दूसरा कि हाँ कि हम पहले से ही इंडिपेंडेंट थे, पर हम अंदर से इंडिपेंडेंट नहीं थे। वैसे हम पहले से ही इंडिपेंडेंट ही है। देख, आपने जन्म लिया तो आपको किसी ने बांध के नहीं रखा, पर अंदर से ही आप इंडिपेंडेंट नहीं थे। अगर आप अंदर से इंडिपेंडेंट हो गए तभी आप इंडिपेंडेंट हो गए।
अपना इन शॉर्ट एट लास्ट वही है कि माइंडसेट वो उसमें सब आ जाता है, कैरियर है, मैच्योरिटी लेवल है, या जो भी इतने जार्गन्स उसमें आप कहीं कितने भी जार्गन्स डालोगे ना तो वो कम ही पड़ेगी। मैं इंडिपेंडेंट फील करता हूँ। तो इंडिया में रहते हैं, बिना हेलमेट के चलेंगे तो भी वादा नहीं होगा। क्या चाहिए इतनी इंडिपेंडेंस? वो इंडिपेंडेंस ही है, आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं ना। बाकी फॉरेन में आप जाओगे तो आपके घर पे अभी तो सूरत में आने लगा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, घर पे मेमो आता है। इंडिपेंडेंट नहीं है, बट देखो वो हम लीगल पॉलिसी ब्रेक कर रहे हैं इतना। अब कार के पीछे दबा के चला वो नहीं आएगा। नहीं ओवर स्पीड पे आ रहा है अभी तो आजकल तो। ओवर स्पीड भैया हम यहाँ पे मिले आज, हम यहाँ पे मिले तो हम इंडिपेंडेंट है। जो नहीं आ पाए वो इंडिपेंडेंट शायद नहीं होंगे, क्योंकि या फिर शायद पता नहीं होगा आप लोगों क्योंकि हमने YouTube पे शेयर नहीं किया था। ये रिलेटिव हो गया। देखने जाए तो बहुत सारे बहुत सारे सोशल इश्यूज देखने जाओगे तो बहुत सारे हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। चेंज अपना माइंडसेट है हम कैसे। आप जो बोल रहे हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट इसलिए यहाँ पे मिले हैं, वो टाइम पे भी मिलते थे सत्याग्रही लोग, भगत सिंह वगैरह सब मीटिंग करते हैं। और विदाउट YouTube सर, इंडिपेंडेंट मिल पाएगा विदाउट यूट्यूब हमने बड़ा किया था विदाउट यूट्यूब, बिना फेसबुक कैसे गैदर करते वही ना। मैं विदाउट व्हाट्सएप बोल सकता हूँ, वो कम्युनिकेट कैसे करते होंगे? कितने लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। समित कंक्लूजन तो यही है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं है सर। बहुत सारे सोशल इश्यूज से इंडिपेंडेंट ऐसे कहना है सोशल इशू। हम लोग इंडिपेंडेंट भले ना हो, लेकिन हमें मतलब दूसरों के ऐसे पे हमें नहीं चलना चाहिए। हमें अपने थॉट्स हमें रखने चाहिए, दूसरों के थॉट्स पे हम लोग सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन our thought we should always go with our wish. That's what I think. वो ऑटोमेटिक नेचर And publish it on YouTube. थॉट्स अंदर से कैसे आता है। क्योंकि मतलब अगर आप 10 लोगों की बात सुनोगे तो आपको 10 लोग अलग अलग बताएंगे। जो आपको अंदर से लग रहा है आप वो करो, that's independence, और वो आप सब लोग कर ही सकते हैं। तो that's Simit, are you feeling independent? Yes. How? नहीं, खाली 2 शब्द बोल दे, 2 सेंटेंस। ये बीमार हुआ? नहीं, we are feeling so lucky to नहीं, we are feeling so lucky to hear you. Please बोलो, 2 सेंटेंस। Yes. नहीं, तेरे वर्ड्स हमको ऐसे इंस्पायर कर रहा है। इंडिपेंडेंट लोग की मार कोई बात नहीं सर, आपके लास्ट वर्ड्स। Before the Independence Day ends. Before the Independence Day ends. मैं सोच रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं वैसे ही जीता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। इंडिपेंडेंट ही जीता हूँ, मतलब मुझे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्ट ऐसे नहीं कर पाया। आपकी शादी हो गई सर? इसीलिए सर। नहीं, लोग बोलते हैं कि शादी होने से वो कुछ मतलब जेल हो जाएगी, लेकिन मुझे वो कोई नहीं कर पाया। मेरे थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता एग्जीक्यूट करने के लिए भी। अगर स्टार्टअप के टेबल पे बैठ के हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट फील नहीं कर रहे, सोचने वाली बात है। सर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, सिर्फ अपना नहीं ले रहे। अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं एकदम ही फ्री हूँ, मुझे कोई दबा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, मैं अपना मर्जी का मालिक। तो बुलडोजर से भी नहीं दबोगे आप? नहीं दबूंगा, इसलिए मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं एकदम ही फ्री हूँ और इंडिपेंडेंट। लेकिन सोशल इश्यूज की बात करें, आजू बाजू के माहौल की बात करें, अपने देश की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्रीडम नहीं है और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हम यूट्यूब पे शेयर नहीं कर रहे। हम इधर डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि हम इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम अपनी मन की बात शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। नहीं, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे भी। हाँ, यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे भी मन की बात करते हैं। What's your name? Sunny Kabrawala. Sunny Kabrawala. Okay, please. If you are having passion, अगर आपको कुछ चीज करना है या पागल है उसके पीछे, तो आप इंडिपेंडेंट हो। वरना बहाने ढूंढोगे कि मैं डिपेंडेंट हूँ किसी पे, इसलिए मैं नहीं करता। Good point, very good point. Ma'am, for me. जस्ट मैंने बताया ऐसे कि फ्रीडम को मतलब फ्रीडम को अपनी लाइफस्टाइल बना लो, हो जाएगा। फ्रीडम का एक मोबाइल फोन आया था, उसने बहुत फ्रीडम दिखाया लोगों को। डिलीवरी हुई उसकी? नहीं, उसकी डिलीवरी हुई ना, लोगों को जब पैसे गए तो लोगों को चल गया था, डिलीवरी हुई उसकी।
मैं भी वो करा लूँ। वही खुद को पहले अपने आप से निकल आए तो भाई हमारा पॉइंट बाहर आ पाएगा। ओके स्टार्ट कर सकते हो। निपुण सर, रिमोट वेव्स बोल दिया मैंने। ना लास्ट वर्ड्स बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड्स। इंडिपेंडेंस मतलब आज हम सब ऐसे इंडिपेंडेंस है और हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए उसके लिए। इंडिपेंडेंस के बारे में हमको हमें सबको बताना चाहिए कि आप दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो, खुद का दिमाग ज़्यादा यूज़ करो। मैं ये कहना So you can motivate people, right? Yes. Motivate him to speak 2 sentences. I already spoke 2 sentences. See, independent नहीं है। I don't have anything to say. Okay, आपने तो बोल दिया। मम्मी पापा का डिस्कशन किया। आप मैम इंडिपेंडेंट नहीं है। No, she is more independent. You're more independent. So you can write down things as I well. think हाँ कि courage होना चाहिए to challenge a question. That's it. We are independent. Because you are owning this cafe. नहीं ये रीजन नहीं है। जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था देरो ऐसा इंडिपेंडेंट गाय, क्योंकि मेरा जो बॉस था वो उसने कि तुमको यही करना है। वो सेड नो व्हाई व्हाई नहीं करना जब वो करना कर लो। मेरा निकाल दो तो कैफे खोल दूंगा मैं अपना। कंपनी इज पेइंग मी समथिंग सो आई कैन यूज माय ब्रेन आल्सो। भैया आप इंडिपेंडेंट हो? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा यहाँ पे। सर कुछ नहीं बोलेगा, इनको देख के मत बोलो। बोलो 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 मेरा फ्रीडम है। देखो आपको भी कभी कैफे खोलना हो तो मेरे पास आना। सूरज स्टार्टअप हम लोग हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स को। मैं खुद कर लूंगा उसके लिए। ठीक है, so it was a very good session. Thank you all for coming, and we hope that we someday would find independence within us, not exterior to us. We would someday find independence within us. Okay, so ending this, we do not say goodbye. We say we will meet again. We will keep communicating. We will keep this community going. We will keep the things motivating. Okay, and we will again meet for sure. वो college का करना है, ठीक है? So thank you all for coming. Thanks a lot. Thanks for conducting this. Thank you and जय हिंद, जय भारत। नेशनल एंथम बजाओ क्या? गा लेते हैं सब लोग। अच्छा गाना है? गा लेते हैं। मुझे